میں نے تمام صورتحال کنٹرول کر لی ہے۔ آن کو اچھی طرح علم ہو گیا ہے کہ میں اپنی بات سے ایک انچ بھی ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کے تاثرات بالکل متوازن تھے، نہ تو چہرے پر کامیابی کی سرخی جھلک رہی تھی اور نہ ہی آواز میں جوش تھا۔ بس ایک سکون، ایک ٹھہراؤ، ایک اطمینان سا جھلک رہا تھا، جیسے اسے اپنی بات رد نہ ہونے سے دلی تسکین ملی ہو۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی نظر آتا تھا، ٹھہرے پانیوں جیسا۔ میں جانتی تھی کہ تمہاری ضد و رٹل فن کی وجہ سے کوئی بھی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ رباب علیم نے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجا کر اسے داد دی، مگر وہ اس کی بات انسنی کر گیا۔ لیکن آن سے میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں ان سے ہٹیلا پن نہیں کرنا چاہتا، مگر پتہ نہیں کیوں میری قسمت کے سارے فیصلے ہی میری مرضی اور پسند کے خلاف ہوتے ہیں۔ شامر بہت بھوجن لہجے میں بولا۔ آن کا خیال آتے ہی اس کے دل میں تعصب کی ایک لہر اٹھی تھی۔ انہوں نے اسے ماں کی طرح پالا تھا، ان کے بیوہ ہونے کے بعد صرف اس کی خاطر شادی نہیں کی اور اسے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر خدا جانے کیا بات تھی کہ اپنے متعلق جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتا وہ آن کے فیصلے اور ان کی پسند سے ضرور ٹکراتا تھا۔ حالانکہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا تھا، مگر پھر وہ اپنی ضد کے اپنے فیصلے پر جم جاتا، چاہ جائے گا کہ اس کی ضد پوری نہ کر دی جاتی۔ وہ اپنی سعادت پر بعد میں جھنجھلا کر رہ جاتا، مگر وہ مجبور تھا۔ لیکن اب یہ ہوا تھا کہ بات چھوٹی چھوٹی فرمائشوں سے نکل کر یک ایک انتہائی اہم فیصلے تک پہنچ گئی تھی۔ آن نے شامیر کے لیے اپنی بیسٹ فرینڈ کی بیٹی کو پسند کر لیا تھا۔ اسے علم ہوا تو لہجہ بھر کو وہ چکرا سا گیا۔ تمہیں سعدیہ بہت پسند آئے گی، ایم ایس سی کر رہی ہے، بہت ذہین ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ وہ تم اس سے ملو گے تو یقیناً۔ آن اسے بہت بے تکلفی سے تفصیل بتا رہی تھی۔ آن کے چہرے سے پھوٹتی چمک نے شامیر جیسے کم گو بندے کو بات کرنے کا حوصلہ مجتمع کرنے پر مجبور کر دیا۔ آن آئی ایم ریئلی سوری، لیکن میں لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ اس کی سب تعریفیں اندر ہی گھٹ کر رہ گئیں۔ انہوں نے کس قدر بے یقینی سے شامیر کی طرف دیکھا تھا۔ تم لڑکی پسند کرو گے؟ وہ مارے حیرت کے اپنی عادت کے خلاف کافی اونچی آواز میں بول گئیں۔ آن، میں پسند کر چکا ہوں۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں تصحیح کی، تو انہوں نے شکی انداز میں اکھڑ سے شامیر کو دیکھا اور وہ بہت پرسکون سی حالت میں ان کے مقابل صوفے پر براجمان تھا۔ وہ کچھ بولنے لگی، مگر حیرت کا غلبہ اس قدر شدید تھا کہ سمجھ نہیں آیا کیا کہیں۔ مجھے یقین نہیں شامی، تم جو گھر کی لڑکیوں سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتے اور سرکل کی لڑکیوں سے یوں بچتے پھرتے ہو جیسے وہ چھوت کی بیماریاں ہو، تم نے لڑکی پسند کر لی۔ ان کے چہرے کے ایک ایک نقش سے استعجاب اور حیرانگی عیاں تھی۔ شامیر کا رنگ دہک اٹھا تھا۔ اس نے بلا وجہ دانتوں پر دانت جمائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جکڑ رکھا تھا۔ کون ہے وہ؟ اور وہ سب سے پہلے یہ کہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ذرا ہچکچا کر گویا ہوا۔ وہ آن، اس کی فیملی اچھی ہے، شریف گھرانہ ہے، مگر اس کی ماں باپ نہیں ہے۔ وہ اپنے تایا کے پاس رہتی تھی، پھر ان کے ناروا سلوک نے اسے ویمن ہاسٹل میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ 1 ماہ تک اس نے میرے آفس میں جاب کی ہے۔ اسے رک رک کر اور بہت ٹھہر کر بولنے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب تفصیل نہ چاہتے ہوئے بتا رہا ہے، مگر اس وقت انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی تو جان اٹکی ہوئی تھی، عمر بھر کی کمائی ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ کتنا پرانا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ ان کے طنزیہ لہجے پر وہ بس ضبط کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ آن، آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ پھر بھی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ شکایتی انداز میں کہتے کہتے رک سا گیا۔ ہاں، انہوں نے افسردگی سے گہری سانس لے کر پشت صوفے سے لگا لی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، مگر میں نے تمہیں کبھی بھی بھتیجا نہیں سمجھا۔ ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں، مگر شامی، تم نے ہر فیصلہ کرتے وقت فقط اپنی ذات کا احساس کیا ہے، سو تم آج بھی وہی کر رہے ہو۔ وہ بہت دل گرفتہ لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے بھیج کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ انہیں کبھی بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر آن، وہ بری لڑکی نہیں ہے۔ اسے اس کے گھر والوں نے تنہا کر دیا ہے، اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ مضطربانہ انداز میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے بے چینی سے بولا۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کب سے جانتے ہو اسے؟ ان کے انداز پر وہ جزبز ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ مسئلہ انتہائی احتیاط سے ہینڈل کرنے والا ہے۔ بس 1 ماہ سے۔ اس کے جواب پر وہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ واٹ، پاگل تو نہیں ہو؟
वो इस कदर अचंभे और नागवारी से बोली थी कि वो लब भेज कर रह गया। ओह माय गॉड शामी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि महज एक माँ की जान पहचान को तुम शादी जैसे रिश्ते से नथी करने पर तुले हो। वो रोहानसी होने लगी। उन्हें यकीन हो गया था कि वो किसी ऐसी वैसी लड़की के चक्कर में फंस गया है। अगर किसी और की जुबानी वो ये सब सुनती तो वो क़यामत तक यकीन ना करती, मगर अब बताने वाला खुद शामिर मलिक था। उसे आन का लहजा बुरा लग रहा था, मगर वो सिर्फ इसलिए खुद पर जब्त किए हुए था कि वो उनकी खुद से मोहब्बत की शिद्दत अच्छी तरह जानता था। आन की जगह अगर उसकी माँ होती तो वो भी यही करती, इसलिए वो उनके रद्द अमल को फितरी समझकर बर्दाश्त कर रहा था। आन, मुझे उससे शादी करनी है, वो ठहरे हुए मगर अटल लहजे में बोला तो वो बेबसी से उसे देखने लगी। क्यों तंग कर रहे हो मुझे शामी? मैं बच्चा नहीं हूँ और इंसानों की अच्छी तरह पहचान है मुझे, और जहाँ तक शादी की बात है तो अब उसमें मेरी जुबान और अना का मसला है। वो उठ खड़ा हुआ। उसके लहजे की मजबूती उसके इरादों का पता दे रही थी। उन्हें अपने बरसों की रियासत के अकारत जाने का ख्याल रुलाने लगा। वो बोली तो उनकी आवाज में आंसू की नमकीनी घुली हुई थी। तो फिर कर क्यों नहीं ली? ये तकल्लुफ़ निभाने की भी क्या ज़रूरत थी? वो बेबसी के हिसार में घिरा उन्हें देखने लगा। वो जानता था कि वो उसे जज़्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रही हैं। परसों तक मैं निकाह चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो घर में भी ये तकरीब कर सकती हैं। उसे बमुश्किल अपना लहजा रूड बनाया था। वो हक्का-बक्का उसे देखने लगी। शामी, उनके लहजे में दुःख घुला हुआ था। आन प्लीज़, क्या आपके लिए मेरी इज़्ज़त, मेरी अना का कोई पास नहीं? मैं आपको दुःख नहीं देना चाहता। वो उनके घुटनों पर हाथ रखे कारपेट पर घुटनों के बल बैठ गया। और क्या दुख दोगे मुझे शामी? उन्होंने बमुश्किल अपने आंसू रोके हुए थे, मगर उनकी आवाज़ की लर्जिश और टूटा हुआ लहजा उनके जज्बात का आईनादार था। खुदा की कसम, बस इस मौका को गुजर जाने दें। बस फिर जो आप कहेंगी वो मैं मानूंगा। आप मुझसे हलफ ले सकती हैं। वो अपने लहजे में तमाम तर सच्चाई से मुँह कर बोल रहा था। वो उसे देखे गई। अब क्या रह जाएगा शामी, और क्या कहूंगी मैं तुम्हें? आन प्लीज, अब बस करें। मैं कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहा जो आप यूं दिलगीर हो रही हैं। वो महसूस कर रहा था कि चंद लम्हों तक मजीद वो इसी शिकस्तगी और दिल गिरफ्ती का मुजाहरा करती रही तो वो अपना फैसला बदल लेगा। इसलिए वो फौरन अपना लहजा बदल गया। फिर उठ खड़ा हुआ। आप अगर चाहें तो लोगों को मदऊ कर सकती हैं, वरना मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी तरफ से और तो कोई नहीं होगा, इसलिए मैं उसे यहीं ले आऊंगा। वो सपाट लहजे में जैसी मीटिंग के पॉइंट्स नोट करा रहा था, वो शल होते जहन के साथ सर थाम कर बैठ गई। आन, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो किसी की बातों के जाल में फंस जाऊं। वो बहुत हमदर्दी के काबिल है। वो जिच आ गया था। तो किस किताब में लिखा है कि हमदर्दी का दूसरा नाम शादी है? वो जल कर बोली। आपका जो प्रोग्राम है वो मुझे बता दें। मैं नहीं चाहता कि वो हॉस्टल में रहे। वो अटल लहजे में बोल रहा था। वो शिकस्तगी का एहसास लिए उसे देखने लगी। अब मैं क्या करूं? वो तिलमिलाकर पूछ रही थी। उनके अंदाज पर धीमी सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का घेराव कर लिया था। सब कुछ आप ही तो करेंगी। उसके हल्के फुल्के अंदाज पर चंद लम्हे वो उसे देखती रही। फिर शिकस्त खुर्दा लहजे में बोली, तुम बहुत जिद्दी होते जा रहे हो शामी। मुझे तुम पर हमेशा से सख्ती करनी चाहिए थी। और उनके अंदाज से ही उनकी रजामंदी झलक रही थी। कुछ भी था कुछ भी था, वो कम अज कम शामिर को खिलौना खोना नहीं चाहती थी। आन, कसम ले ले, जो आइंदा आपको दुख देने वाला फैसला करूं तो बस अभी नहीं। वो मुसलमाना अंदाज में बोला था और वो मुफाहिमाना अंदाज में मुस्कुरा दी। शामिर ने बेख्तियार झुक कर उन्हें अपनी मजबूत बाहों के हिसार में ले लिया था, और अब वो रुबाब अलीम के बिलमुकाबिल मौजूद था। कम ऑन शामिर, ये तुम्हारी जिंदगी है और अपने मुतलिक फैसला करना तुम्हारा हक है। रुबाब अलीम ने तुनक कर कहा था। नहीं रुबाब, तुम गलत कह रही हो। ये मेरी नहीं, आन की जिंदगी है। उन्होंने मेरी खातिर दुनिया त्याग रखी है। उसने फौरन रुबाब अलीम की तस्दीक कर दी थी। जवाबन उससे लापरवाही से शाने उचकाए थे। तुम्हारी जिंदगी कभी उनकी थी, मगर हमें अभी एक बात लेकर कर लेनी चाहिए शामिर। मुझे कभी भी मोहब्बतें नहीं मिली। तुम्हारी तवज्जो मिली तो अच्छा लगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, बस तुम्हारे अंदर महसूस करने की हिस्स बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरा मसला जरा और है। वो बहुत इत्मीनान से उस पर कुछ वाजे करने की कोशिश कर रही थी। शामिर ने आंखें सुकेड़ कर गौर से देखा था। क्या कहना चाहती हो तुम? उसने संजीदगी से पूछा था। वो उसके लहजे में अजीब सी बात महसूस कर रहा था। साफ सी बात है शामिर, उसने निहायत सुकून से उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा था। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, तुम्हारी आन के साथ भी नहीं।
उसकी आसानी और रवानी से कही गई बात ने शामिर को शुशदर कर डाला। चंद सेकंड तक तो उसका दिमाग उसकी बात को समझने की कोशिश करता रहा। जब वो बात की तह तक पहुंचा तो बस हाली निगाहों से उसे देख कर रह गया। मैं तुमसे शादी पर तैयार हूँ क्योंकि तुम में हर वो क्वालिटी है जो किसी भी लड़की को चार्म कर सकती है, लेकिन मेरा मसला ये है कि तुमको सिर्फ मेरा होना पड़ेगा, इसलिए तुम मुझे अलहदा रखोगे। रुबाब अलीम नहीं जानती थी कि उसका कहा हर लफ्ज शामिर मलिक को लहजा ब लहजा उससे कोसों दूर लिए जा रहा है। उसने अपने तौर पर शामिर को अच्छी तरह समझ लिया था, मगर वो नहीं जानती थी कि वो उलझा हुआ रेशम है जो सुलझाने की कोशिश में बस उलझता ही चला जाता है, और तुम बस अपनी पूरी तवज्जो मुझे दोगे। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारा हर पल फकत मेरे लिए होगा। वो कह रही थी। शामिर ने बड़े सुकून से उसकी तरफ देखा था। वो मर्द था, मजबूत आसाब का मालिक, और फिर शामिर मलिक को तो वैसे भी अपनी दिली और दिमागी कैफियत छुपाने में कमाल हासिल था। इतनी सी देर में उसके दिमाग की रगें तन गई थी, मगर वो समंदर था जिसके अंदर चाहे सैकड़ों तूफान बिफर रहे होंगे, मगर सतह से वो हमेशा पुरसुकून ही दिखाई देता है। रुबाब अलीम मेरे भी वालदैन नहीं है, आन मेरा सब कुछ बन गई, मगर फिर भी वो मेरी इस कमी को दूर नहीं कर सकी जिसका एहसास किसी माँ को अपने बच्चे के लाड उठाते देख कर या किसी बच्चे बाप को अपने बच्चे पर शफकत लुटाते देख कर होता है। मैं नहीं जानता कि मोहब्बत क्या होती है, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आन मेरा सब कुछ है, और मेरी इस लॉजिक के जवाब में आन मुझे हमेशा यही कहती हैं कि मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है, लेने का नहीं, सिर्फ देने का नाम है। इसलिए वो बस मुझसे मोहब्बत किए चली जाती हैं। और तुम्हारी कैसी मोहब्बत है जो किसी की सांसों की जमानत को बस अपने कब्जे में कर लेना चाहती है। मैंने वाकई तुमसे मोहब्बत नहीं की रुबाब अलीम, तुमने ठीक समझा। मेरे अंदर महसूस करने का मादा बहुत ज्यादा है, और मैंने अपना और तुम्हारा दुख एक समझा था, इसलिए मैं जज्बाती शख्स ना होने के बावजूद शायद जज्बाती हो गया था। वो ठहरे हुए लहजे में बोलता जब्त की कड़ी मंजिलों को तय करता उठ खड़ा हुआ। और जब कल मैंने आन से तुम्हारे मुतलिक फाइनल किया था तो कितनी ही बार मैंने उनसे कहा था कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ, इंसान की परख है मुझे, और वो हर बार बेयकीनी से मुझे देखती थी। तब मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर अब समझ गया हूँ। उसके चेहरे की सुर्खी और माथे पर उभरी सब्ज रग उसके जहनी खिलफशार का वाज़ेह सबूत थी। और रुबाब ने बेबसी से उसे देखा। शामिर, तुम मुझे समझ नहीं रहे। आखिर मैं भी तो बस तुम्हारी होकर रहूंगी ना, फिर तुम क्यों नहीं? तुम नफसियाती मरीजा हो और कुछ नहीं। रुबाब अलीम, इंसानों में रह कर ही तुम इंसान कहला सकती हो। ये तन्हाई और अकेलापन तुम्हें कुछ नहीं देगा। वो सर्द लहजे में उस पर उसकी हकीकत वाजे करते हुए बोला तो उसने गुस्से से शामिर को देखा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं शामिर मलिक। अगर तुम्हें मेरा कहा मंजूर है तो वेलकम, और अगर नहीं तो परसों के लिए कोई लड़की साथ ज़रूर ले जाना, ताकि तुम्हारी आन को कोई मजीद सदमा ना पहुंचे। उसके तल्ख तंजिया और इस्तेज़ाइया लहजे ने शामिर के अंदर आग से भड़का दी थी। मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा, इतना गलत फैसला मैंने कैसे कर लिया। उसने तासुब से रुबाब अलीम के खूबसूरत चेहरे को देखा तो उससे अपना मुंह फेर लिया। पता नहीं उसके दिमाग में कौन सी गिरा थी। शामिर से वो मोहब्बत करती थी, मगर वो उसे फ़कत अपना देखना चाहती थी, और शामिर की तरह ना की सरबुलंदी इतनी अजीज थी कि वो सारे ताल्लुक तोड़ के जा रहा था। तो उसे एक बार भी नहीं पुकारा था। वो धुंधलाती नजरों से उसे जमीन को मजबूत कदमों तले रोंदता जाता देखती रही। उसने पहरों सोचा था कि वो शामिर को अपना लेगी, मगर जहां वो सोचती उसके अलावा बाकी सब का भी होगा, वहीं वो नफी में सर हिला देती। उससे ये सोच भी बर्दाश्त नहीं होती थी कि शादी के बाद उसके शोहर को कोई उससे शेयर करे। वो ये भी जानती थी कि शामिर मलिक कभी अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता, मगर वो यही तो चाहती थी कि कोई ऐसा मिले जो उसकी हाथे दुनिया त्याग दे। अच्छा हुआ शामिर मलिक मुझे अभी इल्म हो गया, वरना तुम जैसे अच्छे इंसान की जिंदगी शायद एक नफसियाती मरीजा के हाथों बर्बाद हो जाती। वो सख्ती से आंखों को हाथों से पोंछ कर अंदर की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों में शिकस्त की लर्जिश थी। उसकी जहनी हालत इस कदर तबाहकुन थी कि वो ठीक तरह से गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर पा रहा था। अगर वो दिन में ड्राइव कर रहा होता तो अब तक या तो उसका हादसा संगीन किस्म का एक्सीडेंट हो चुका होता, वरना चालान तो लाजमी ही था। वो उस कदर टेंस हो रहा था कि पाँव का दबाव एक्सीलरेटर पर गैर इरादी तौर पर बढ़ जाता। दिलो दिमाग इस कदर बागी हो रहे थे कि हद नहीं। उसने एक मरतबा सड़क के किनारे गाड़ी रोक कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। इस लम्हे उसको सिर्फ और सिर्फ आन का ख्याल आ रहा था। आज उन्होंने सब मिलने वालों और रिश्तेदारों को इमरजेंसी बुलावे भिजवा दिए थे
کل نکاح کی تقریب تھی اور اس کا وجہ چہرہ تنا ہوا تھا، نچلا لب مستقل دانتوں تلے دبا رکھا تھا۔ اب کیا ہوگا کا نیون سائن جس ذہن میں پوری طرح جگمگا رہا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اور روڈ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اسے ایک انسانی وجود کو تیزی سے بھاگتے ہوئے روڈ کے درمیان دیکھا۔ اگر وہ فی الفور بریکس نہ دبا دیتا تو وہ جو کوئی بھی تھا بری طرح کچلا جاتا، مگر اس کے فوری طور پر بریکس لگانے کے باوجود وہ آخر میں ہلکے سے گاڑی سے رگڑ کھا کر گر ہی گیا۔ اس حادثے کا فوری رد عمل یہ ہوا کہ تمام تناؤ اور ذہن کو پراگندہ کرنے والے خیالات بھگ سے اڑ گئے۔ وہ بصورت دروازہ کھول کر باہر نکلا اور تیزی سے گرنے والے کی طرف دیکھا اور اس بے ہوش وجود کو سیدھا کرتے ہی وہ کرنٹ کھا کر خود بھی سیدھا ہو گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ او گاڈ! اس نے سڑک پر ادھر ادھر دور تک نگاہ دوڑائی مگر کوئی ذی روح دکھائی نہ دیا۔ اسے کچھ خیال آتے ہی طائرانہ نظر جائے حادثہ پر ڈالی۔ لڑکی نے بڑی سی گرم چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، پاؤں میں آرام دہ جوتے تھے اور اس کا بیگ اس سے تھوڑے فاصلے پر گرا ہوا تھا۔ شامیر کو یہی شے کام کی دکھائی دی۔ اتنے رات گئے سخت سردی میں اکیلی لڑکی کا تنہا گھر سے نکل کر سڑکوں پر مارا پھرنا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی تو گزری تھی، اس صنف پر سے اعتبار اٹھے، ابھی تھوڑی دیر قبل ہی تو اس کا بھرم ٹوٹا تھا۔ اس کے ذہن میں شک کے ناگ نے پھن لہرایا۔ شبے کے باوجود بیگ میں موجود زیورات اور نقدی شامیر کے حلق میں کڑواہٹ بھر گئی۔ اس نے دانت پر دانت جما کر ایک نظر اس لڑکی کے خوف اور سردی سے رنگ بدلتے بے ہوش چہرے پر ڈالی۔ پھر غصے سے اس نے بیگ گاڑی میں پھینکا اور پنجوں کے بل بیٹھ کر ناگواری سے اس کا رخسار تھپتھپایا۔ وہ بالکل یک ہو رہی تھی۔ اگر وہ تھوڑی دیر یوں ہی سردی میں پڑی رہتی تو یقیناً اللہ کو پیاری ہو جاتی۔ اس کا تیش حدوں کو چھونے لگا۔ جی چاہا یا تو اس لڑکی کا گلا دبا دے یا یہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ تپے ہوئے دماغ اور تنے ہوئے چہرے کے ساتھ شامیر نے اس کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹایا اور دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہیٹر کی گرمی نے اس کے دماغ کو مزید گرمی پہنچائی۔ یہ سب آن کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے دانستہ و نادانستہ ان کی حکم بدولی کی ہے، مگر خدا ایک حد تک ہی رسی دراز رکھتا ہے۔ اور اب یہ مصیبت، اسے تپے ہوئے دماغ سے سوچا اور گاڑی کا رخ فلیٹ کی طرف موڑ دیا۔ ساتھ ہی موبائل ڈیش بورڈ پر سے اٹھایا اور گھر کے نمبر دبانے لگا۔ آنکھ کھلتے اس کی نگاہ چھت پر پڑی۔ چند ثانیوں تک وہ غیر دماغی کیفیت میں لیٹی رہی۔ سویا ہوا ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وحشت زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گلاس ونڈو سے ہلکی ہلکی روشنی صبح کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے سچے رب کو پکارا تھا۔ وہ اپنی چادر گھسیٹتی گرم کمبل سے باہر نکل آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیروں میں جوتے موجود تھے۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اپنی دھڑکن بآسانی سن رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کی نوب گھمائی تو وہ بنا آواز کے کھلتا چلا گیا۔ سامنے نظر آنے والا منظر اس کی نبض تھما دینے کو کافی تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا شخص اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے جل تھل ہو گئیں اور دل کی دھڑکنیں بے قابو وہ ہکلا کر رہ گئیں۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ؟ خوف اس کے چہرے اور آواز سے مترشح تھا۔ شامیر ٹیبل پر پیر پھیلائے بیٹھا تھا، سیدھا ہوا۔ اگر میں نہ لاتا تو شاید ابھی تم کسی اور سے یہی سوال کر رہی ہوتی، اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جس کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے، ایک نہ سمجھ میں آنے والی سرد موری فضا میں چھائی ہوئی تھی۔ میں اب جاؤں؟ اس نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا تو شامیر کی نگاہ چند لمحے اس کے چہرے کو گرفت میں لیے ٹھٹکی۔ گزشتہ رات کا واقعہ اور اس لڑکی کا لہجہ ذرا بھی میل نہیں کھا رہے تھے۔ کہاں جا رہی تھی تم اتنی رات کو؟ اس نے چپتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مزید کھڑی نہیں رہ سکی، یوں ہی دروازے کے فریم کو پکڑ کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کوئی بھی شریف لڑکی اتنی رات گئے باہر ابھی اس کی زہر خند بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ رو پڑی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں جی۔ شامیر نے استزائیہ نظروں سے اس کے ڈرامے کو دیکھا۔ بری لڑکی اور اچھی لڑکی، صاف اور سیدھی بات کرو، اتنی رات کے کہاں جا رہی تھی اور جو تمہارے ساتھ تھا وہ کہاں گیا؟ چند لمحوں تک تو وہ شامیر کی اتنی فضول بات اور شکی لہجہ سن کر ششدر رہی، پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں بالکل تنہا تھی، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا۔
तुम यहाँ से उठो और दफा हो जाओ। अगर तुम मेरी गाड़ी से नहीं टकराती तो मैं कभी भी तुम्हें बचाने की जहमत ना करता। वो दांत पीस कर यकलख्त शोला बार लहजे में गोया हुआ तो उसने बेहद खौफजदा निगाहों से ही उसकी तरफ देखा, जो कुछ पूछे बिना, कुछ जाने बगैर ही उस पर गर्म हो रहा था। देखिए प्लीज, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। उसकी आवाज कप आ रही थी, आंखों से आंसू उमड़े आ रहे थे। मोहतरमा, आपसे मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कि मैं आपको समझने की कोशिश करूं। अब आप मेरा दिमाग खराब मत करें। और आपका बैग वहीं आपके पास पड़ा था, वो उठाएं और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। वो उकताहट आवेज लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ। आप प्लीज मेरी बात सुन ले। उसे भीगे हुए मुल्तजियाना लहजे में उससे इल्तिजा की तो वो कहरालूद निगाहों से उसे देखने लगा। मेरे पास फजूल बातें सुनने के लिए वक्त नहीं। उसका सर्द लहजा नीलाश के वजूद में सनसनी दौड़ाने के लिए काफी था। आप मुझे किसी दारुल अमान या हॉस्टल में पहुंचा दे प्लीज। मैं आपके लिए दुआ करूंगी, प्लीज, आपको अपनी माँ का वास्ता। वो एकदम उसके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए मिन्नत करने लगी तो लहजा भर को वो सुन हो गया। बहुत देर बाद वो बोलने के काबिल हुआ था। देखो, ना तो विमेन हॉस्टल्स इस काबिल रहे हैं कि वो औरतों की पनाहगाह बने और ना ही दारुल अमान। तुम अपने घर वापस चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसका लहजा अभी उखड़ और तुर्श था, मगर बात वो माकूल कर रहा था। वो सर हाथों में ये थामे रो रही थी। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह मियाँ, मैं क्या करूं? उसका मुसलसल और हजारों कितार होना शामिर को सुलगाने को काफी था। देखो, तुम जो भी कोई भी हो, अब सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। उसकी बातों ने नीलाश को मतोहश व हरासा कर दिया, गोया ये आखिरी पनाहगाह भी छिन रही थी। प्लीज, आप मेरी मदद करें। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी मजबूर और बेबस हूँ। आप मेरी मदद करें, खुदा आपको इसका सिला देगा। आपको अपनी माँ का वास्ता है, खुदा के लिए आप मुझे अपनी माँ के पास ले जाएं। वो मुझे जहाँ कहेंगी मैं वहीं चली जाऊंगी। मैं आपके लिए दुआएं करूंगी, प्लीज। वो तो जैसे धूल मट्टी बनकर कदमों में बिखर रही थी, इस कदर बेकरारी से रो रही थी कि गोया आंसू भर जाना चाहती हो। और शामिर दम बहूद सा उसे देख और सुन रहा था। उसने अपनी 29 साल जिंदगी में कभी किसी लड़की को रोते हुए नहीं देखा था, सिवाय ड्रामों और फिल्मों में रोने के। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, खुदा गवाह है। आप मुझे अपनी माँ या बहनों के पास ले जाएं, मैं उनको हर बात बता दूंगी। तुम्हें किसी को कोई बात बताने की जरूरत नहीं है। वो यकलख्त सोचों के भंवर से निकलकर सख्ती से बोला तो वो खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। शामिर ने सख्ती से पूछा था, तुम घर वापस जाओगी? नहीं, कभी नहीं। वो जर्द पड़ने लगी। तो फिर एक डील करोगी? वो सपाट नजरें उस पर जमाए हुए था। डील के नाम पर वो बितक उठी। शामिर ने उसके तेजी से बहते आंसू और रंग बदलते चेहरे से उसके ख्यालात का अंदाजा लगा लिया। डील का वो और ही मतलब ले रही थी। मैं आज एक लड़की को घर ले जा रहा था जिससे मेरी शादी होना थी। वहां सब तैयारियां हो चुकी हैं। और वो लड़की, उसे सपाट लहजे में बताते हुए अजनबी निगाह नीलाश के मुतहैयर चेहरे पर डाली, वो मुझसे शादी नहीं कर रही। और आखिर में शामिर ने एकदम अपनी ऑफर उसके सामने रखी थी। उसकी बात सुनकर वो बैठी रह गई। वो क्या समझ रहा था उसे बिकाऊ माल? तासुफ और सदमे से वो रोना भूलकर आहिस्ता आहिस्ता उठ खड़ी हुई। आप मुझे गलत समझ रहे हैं और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और मैं तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे सकता हूँ। शामिर को गोया उसके एहतजाज से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे रोती हुई बेबस लड़की को चारा डाला था। आप क्या कह रही हैं? उसका ज़हन माऊफ हुआ जा रहा था। देखो, तुम्हारे पास एक ये रास्ता है और दूसरा ये कि मैं तुम्हें लेकर पुलिस स्टेशन जाऊँ और वो तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दें। और अगर तुम ये दोनों काम नहीं करना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मगर इतना तो तुम जानती ही होगी कि अकेली और घर से निकली हुई लड़की के साथ ये दुनिया क्या सलूक करती है। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो इसके बदले तुम कोई भी शर्त रख सकती हो, अलबत्ता तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा मेरा है। वो जर्द पड़ती रंगत के साथ उसकी बातें सुन रही थी। उसके सादा लौह से दिलो दिमाग को जल्जलों का सामना करना पड़ रहा था। दुनिया का एक रूप अभी चंद हफ्ते कबल ही तो उसे देखा था, मगर अब तो एक के बाद एक तमाशा सामने आ रहा था। और वो खुदा की बनाई इस खूबसूरत और अनोखी दुनिया में अशरफुल मखलूकात का पैदा किया बिगाड़ देख कर तमाम उम्मीदें और आस खो बैठी थी। शामिर मलिक का तना हुआ चेहरा यकलख्त मुलायमत की तरफ माइल हो गया। उसे आंखें मूंद कर बेसाख्ता गहरी सांस ली थी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। शामी, जी चाह रहा है कि थप्पड़ मारूं तुम्हारे मुंह पर। पता भी है था कि तुम्हें
क्या टाइम है फंक्शन का, फिर भी यूं मेहमानों की तरह आ रहे हो जैसे किसी और की शादी अटेंड करते हैं। चाइना सिल्क की ग्रे सिंपल साड़ी में मलबूस आन उस पर बरस रही थी, और वो जिंदगी में शायद पहली बार यूं खामोशी से सर झुकाए खड़ा सुन रहा था। उसके कजन हैरत से ये तमाशा देख रहे थे। सारा कसूर आपका है आन। आपने यही थप्पड़ मुझे पहले मारा होता तो। उसे इस कदर दिल गिरफ्तगी से कहा कि उन्होंने बेख्तियार आगे बढ़कर उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। क्या हुआ मेरी जान? ये हर कोई साकित था। ये शामिर मलिक है, ये शामिर मलिक है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस मौसूफ को अब ख्याल आ रहा है कि अब आज़ादी के दिन खत्म हुए, अब हमको उधार की हाजत है। छोटे चचा अपने मखसूस खुश दिलाना अंदाज में बोलते आए और उसे खुद से लिपटा लिया। अब सबकी नज़र पीछे खड़े निस्वानी वजूद पर पड़ी थी। चलो अब जल्दी से तैयारी पकड़ो। आन ने शामी को छोटे चचा के साथ रवाना किया और नीलाश को अपने साथ अंदर ले आई। अरे वाह आंटी, ये है शामिर भाई की पसंद। कमरे में तैयार होती लड़कियों में हलचल मच गई। ब्यूटीफुल। सुबह से ही बेचैन हो रहे थे शामी भाई। अच्छा फजूल बातें छोड़ो, टाइम नहीं है। और मोमो, तुमने ब्यूटिशियन को फ़ोन कर दिया था ना? आन बिल्कुल संजीदगी से उन्हें टोक कर मोमो की तरफ मुतवज्जे हुई, जो नीलाश का जायजा लेने में मसरूफ थी। वो फौरन अलर्ट हुई। जी आंटी, बस वो पहुंच रही है। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर पर उचटती निगाह डाली। ओके। उन्होंने गहरा सांस लिया, फिर नीलाश की तरफ मुतवज्जे हुई। वो खौफजदा से तासुरात लिए सहमे सहमे अंदाज में सबको देख रही थी। उन्होंने नरमी से उसका शाना थपथपाया। ये सब शामी की कज़न्स हैं, तुम्हारी बहनें हैं। नीलाश ने नमाकों से उनकी तरफ देखा। उनकी आवाज़ में नरमी तो थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की सी भी रमक नहीं थी। उसने ये नज़रें झुका ली। वो उसे लड़कियों के हवाले करके चली गई। अब वो सब अपनी तमाम तैयारियां भूल भाल कर उसके गिर जमा हो गई। आपका नाम क्या है? मोमो बगौर उसकी लंबी घनी पलकों वाली खूबसूरत स्याह आंखों को देखते हुए पूछ रही थी। उसने सूखे लबों पर जुबान फेरी। पानी। वाट? पानी? यानी तुम्हारा नाम? एनी तो बस चिल्ला ही उठी थी। उसने फौरन घबरा कर नफी में सर हिलाया। नहीं जी, मुझे प्यास लगी है। ओह! सबके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मोमो ने ग्लास में पानी लाकर उसे थमाया, जो वो आधा पी गई। उसके बाद तारुफ का मरहला आया। ये शामी भाई की खालाजाद है, सबा और नीमा। ये मामू की बेटी है ज़ारा। ये छोटे चचा की बेटी है उर्फ मरियम उर्फ मोमो। और ये बड़े चचा की एनी और फजीन। और ये बाकी। उफ, इतना लंबा तारुफ था कि वो चकराने लगी। एक तो हवास पहले ही साथ छोड़े जा रहे थे। रात से एक खेल भी उड़कर मुंह में नहीं गई। रात से एक खेल भी उड़कर मुंह में नहीं गई थी, और अब हालात ने जो करवट बदली थी तो जहन इस कदर मुंतशिर हो रहा था कि किसी की बात पर तवज्जो मरकूज नहीं हो पा रही थी। फिर उन्हें शायद उसकी फीकी पड़ती रंगत पर तरस आ गया। अब आप ज़रा रेस्ट करें, अभी ब्यूटिशियंस आ जाएगी तो 4-5 घंटे फिर बैठना पड़ेगा। मोमो ने तो उसके दिल की बात की थी। इस वक्त मुंतशिर जहनी हालत और एक गरिया से सुर्ख और बोझल आंखें बस सुकून तलब कर रही थी। एनी यार, लग तो नहीं रहा कि एक माह तक शामी भाई के ऑफिस में जॉब करती रही हो। मोमो की धीमी आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी। हाँ यार, बहुत मासूम सी है। ऐसी मासूमियत कम ही किसी लड़की के चेहरे पर दिखाई देती है, और वो भी काम करने वाली लड़की के। मोमो के जवाब में एनी भी इसी लबो लहजे में बोली थी। वैसे इसे देखकर अंदाजा हुआ है कि शामी अपनी पसंद की शादी पर क्यों उड़ा हुआ था। शादियाँ तो उसके आगे कोई चीज़ नहीं थी। वजीन आपी ने भी उनके बातों में हिस्सा लिया था। कंबल में मुंह छुपाए लेटी नीलाश की आंखों के किनारे भीगने लगे। यही हुस्न तो मुसीबत बन गया है मेरे लिए। मेरी जान, मेरी इज्जत, सब कुछ तो उसने दांव पर लगा दिया था। काश मैं भी आम सी मामूली शक्ल सूरत वाली लड़की होती। वो बहुत शिकस्तगी से सोच रही थी। आन ने इतनी इमरजेंसी में भी तकरीबन सभी को बुला लिया था। क्या रिश्तेदार और क्या मिलने जुलने वाले। बहुत से चाहे वो गोइयाँ हो रही थी। बेतकल्लुफ़ अफराद आन से साफ अल्फाज में पूछ रहे थे, और वो लबों पर फीकी मुस्कुराहट सजाए सबको मुतमईन कर रही थी। दरअसल लड़की के वालिदैन हयात नहीं है, और वो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखती है। इसलिए उसे वेमेन हॉस्टल में रहना पड़ रहा था, जो कि मैं नहीं चाहती थी। इसलिए इतनी अफरा तफरी करना पड़ी। मगर वो है कौन? नाम क्या है उसका? अब की बार वो भी गड़बड़ा गई। नाम? पता नहीं शामी ने क्या नाम बताया था, और पता नहीं बताया भी था या नहीं। भाई, अब सब कुछ अगर मैंने बता दिया तो तजस्सुस खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में वो आप सबके सामने होगी तो खुद ही देख लेंगी आप। वो जल्दी से बात लपेटती आगे बढ़ गई। इस लम्हे उन्हें शामी पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसकी जिद और हठीलेपन ने उन्हें शर्मिंदगी के ढाने पर ला खड़ा किया था।
वो कमरे में दाखिल हुई तो ठिठक कर रुक गई। सामने ही ब्यूटिशियन उसे तैयार करने के बाद फाइनल जायजा ले रही थी। नफीस कीमती सुर्ख लहंगे, बारीक और नाजुक फुल आसीनों फुल काम उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया था। शामी की दुल्हन के लिए उन्होंने जाने कब से तैयारियां शुरू कर रखी थी, शायद इसी दिन के लिए। गुमसुम और खोई खोई सी वो लड़की इस कदर हसीन लग रही थी कि हद नहीं। उनके हल्का ऐबाब पे काफ़ी खूबसूरत लड़कियां मौजूद थीं, बल्कि खुद उनकी भतीजियां खासी प्यारी थी। मगर ये तो और ही हुस्न था, भड़कता हुआ। मोमो, मौलवी साहब आ रहे हैं निकाह के लिए, उन्होंने संजीदगी से कहा। वो अब भी वैसे ही बैठी थी, बिना पलक झुकाए जमीन को देखती। मोमो ने जल्दी से उसकी गर्म चादर उसके ऊपर डाल दी। निकाह हो गया था। लॉन में टेंट लगाकर जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। हाँ, उधर उसने हाँ कर दी थी। उसे इंतजार ही रहा, कोई क़यामत नहीं आई। उसे लाकर पुरसकून और मुतमईन नजर आते शामिर मलिक के पहलू में बिठा दिया गया। वो तब भी वैसी ही थी, ना तो उसके चेहरे पर हया के डेरे थे और ना ही रिवायती दुल्हनों वाले तासुरात। आन ने बगौर दोनों के सुते हुए चेहरों का जायजा लिया था। कोई बात उन्हें महसूस हो रही थी, मगर वो समझ नहीं पा रही थी। जबरदस्त भाई शामिर, तुमने तो हम सबको पीछे छोड़ दिया। शामिर अब अपने दोस्तों और कजन्स के निर्गे में था। वैसे तुम्हारी पसंद की दाद ना देना ज्यादती होगी। अली ने उसे शाने पर हाथ मारा। तुम सबको झलने के अलावा और कोई काम नहीं है? बहुत सुकून से पूछा तो वो उसे घूरने लगा। अच्छा, यानी कि हम जो इतनी तारीफें कर रहे हैं वो जेलसी के जुमरे में आती हैं। जैगम ने उस पर चढ़ाई कर दी। वो उसे कोई अच्छा सा जवाब देने ही वाला था कि अजीब सा शोर मच गया। स्टेज पर हुजूम सा लगा था। क्या हो रहा है वहाँ? ज़हीर ने उछक कर देखने की कोशिश की। दुल्हन बेहोश हो गई है। कहीं से आवाज़ कानों में पड़ी तो शामिर ने बेसाता गहरी सांस अंदर खींची। इन सब के लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई थी। मुझे लगता है तुम्हारे मुतालिक किसी ने भाभी को बता दिया है, बस यही सदमा लग गया होगा। अली ने मसूरी संजीदगी का मुजाहरा किया था। शट अप! उससे गुस्से से उसे देखा भी था। एक तो पहले ही अंदर टेंशन खाई जा रही थी, ऊपर से ये और मुसीबत पड़ गई थी। उसकी बेहोशी मज़ीद ड्रामा बना रही थी। ये होता है असल रोब। अभी मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ और मेरे यार को बारोब होने की सनद मिल गई। जैगम शरारत से बोला था। तुम लोगों को और कुछ नहीं सोचता? वो वाकई गुस्से से भर गया, मगर उधर वो सब ढेर थे। हमें तो हमेशा हरी हरी सूझती है। फारूक ने एंट्री दी। तो फिर चलो जाकर, यहाँ वैसे भी हरी हरी काफ़ी है। वो जल कर कुछ इस अंदाज में बोला कि सब ने मुश्तरका कहका लगाया था। रात गए मेहमानों की रवानगी अमल में आई तो वो भी अंदर बढ़ गया। शामी आन ने उसे पुकार लिया था। इस वक्त वो इस कदर टेंस हो रहा था कि किसी से बात नहीं करना चाह रहा था। यूं भी जो बात वो कर चुका था, उसकी अजियत वो अच्छी तरह महसूस कर रहा था। वो थके थके कदमों से उनके पास जा बैठा। उन्होंने बहुत प्यार से उसका माथा चूमा, फिर बालों को हाथों से संवारा। उनके इस अमल ने हमेशा की तरह उसके अंदर इत्मीनान उतारने के बजाय उसे बेचैन कर दिया था। उसे बेख्तियार माथा उनके शाने पर टेक दिया। अगर तुम इसलिए परेशान हो कि मैं तुमसे खफा हूं तो ऐसी कोई बात नहीं शामी। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। उन्हें उसकी परेशानी की एक ही वजह दिखाई दी थी और वो बहुत मुलायमत से बोली। आन में आपको हमेशा बहुत तंग करता हूँ। मैंने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया जो आपकी मर्जी के मुताबिक हो। उसे थके थके लहजे में दिल का बोझ हल्का किया तो उन्हें धचका सा लगा। कम ऑन शामी, ये मौका नहीं है ऐसी बातों को दोहराने का। बल्कि मैं तो तुम्हें समझाने लगी थी कि जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुम्हें सदा खुश देखना चाहती हूँ। वो पता नहीं क्या कह रही थी और वो सोच रहा था। आप आप मुझे खुश देखना चाहती हैं, यानी फिर से वही ख्वाहिश जो मैं पूरी करने से कासिर हूँ। आई एम सॉरी आन। नीलाश भी परेशान है। इतनी चुपचाप और गुमसुम सी है। उसे समझाना कि इस घर में उसे वही मकाम और इज्जत मिलेगी जिसके वो मुस्तहिक है। वो खौफजदा है। शायद तुमने उसे हम लोगों के मुतलिक ज्यादा नहीं बताया। आन, आप इतनी मेहरबान क्यों हैं? मैंने हमेशा आपकी मर्जी के उलट काम किया है। आपने कभी मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे मारा क्यों नहीं? मुझे डांटा क्यों नहीं? वो शिकस्तगी से पुर लहजे में पूछ रहा था। शामी, उन्होंने तहयुर से उसे अपने सामने किया। पागल हो गए हो क्या? ये मौका है ऐसी बातों का? बस मैं सब कुछ भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। और अब मैं कभी तुम्हें यूं दिल गिरफ्ता और शिकस्त खुर्दा ना देखूं। खुश हो तो खुशी तुम्हारे चेहरे पर नजर आनी चाहिए। उन्होंने हबके से उसे देखा तो वो अपने आप को संभाले उठ खड़ा हुआ। और नीलाश को भी समझा देना, यहाँ सब प्यार करने वाले हैं। घबराने या खौफजदा होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर कह रही थी कि जहनी टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गई थी।
ان کی بات نے کے جواب میں اسے غائب دماغی سے سر ہلایا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب ضرورت کا ٹائم عافیت سے گزر گیا تھا تو وہ مصیبت اور بوجھ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سمپل سے نائٹ ڈریس میں ملبوس بیڈ سے ٹیک لگائے کارپیٹ پر گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ وہ چند ثانیوں تک دروازے میں ہی کھڑا رہ گیا۔ اس لمحے پوری شدت کے ساتھ احساس ہوا تھا، او گاڈ، اب یہ میرے نام کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، اور یہ میرے لیے تو نہیں بھاگی تھی گھر سے۔ اس کی کن پٹیاں سلگنے لگی، حالانکہ یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ تھا، مگر احساس زیاں تو اب ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می، اس کی آواز پر نیلاش نے بہت تھکے ہوئے انداز میں سر اٹھایا اور بوجھل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آر یو رائٹ ناؤ؟ وہ بولی کچھ نہیں، لیکن بس اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ وہ لب بھینچے چند سیکنڈ تک اسے دیکھتا رہا، پھر وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، کچھ سوچ کر جیسے الفاظ جمع کیے۔ دیکھو، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تحفظ کی ضرورت تھی، وہ تمہیں مل گیا، اور مجھے آن کی عزت اور زبان کا پاس رکھنا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب نہیں چاہتی تھی، مگر اب جب کہ ہم یہ قدم اٹھا ہی چکے ہیں تو پھر تھوڑے عرصے تک اسے نبھانا بھی پڑے گا۔ اسے اتنا کہہ کر ایک نظر اس کے زرد ہوتے چہرے پر ڈالی۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تمہیں یہاں سے چھٹکارا مل جائے، اس کے بعد تم جہاں کہو گی وہاں پہنچانا میری ذمہ داری ہوگا۔ اور ایک بہت ضروری بات، جتنا تم گھر والوں سے اور خصوصاً آن سے دور رہو گی، انہیں خود سے بدگمان کرو گی، اتنی ہی جلدی میں اس بات کو ایشو بنا کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے جانے کیا سمجھ رہا تھا، بکاؤ مال یا پھر کھلونا؟ وہ اندر ہی اندر پگھلنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا ہنسے۔ یہ شخص اسے تحفظ دینے کی بات کر رہا تھا، یہ تحفظ ہے؟ اسے کوئی جواب دیے بغیر بھاری ہوتے سر کو دوبارہ گھٹوں پر ٹکا دیا، جبکہ اب وہ خود کچھ ہلکا ہو کر خفیف سے شانے اچکا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مطمئن تھا کہ فی الحال آن خوش تھی۔ وہ مزمحل سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے شدت گریہ سے لال ہو رہے تھے۔ ایک ہی رات میں قسمت کیسے پلٹا کھا گئی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس قدر سادہ دل و دماغ کی لڑکی تھی کہ مردوں کی سیاست کو وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، مگر دل کو ٹھیس سی ضرور پہنچی تھی اپنی ناقدری دیکھ کر۔ اسے ہمیشہ آئینہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، مگر اب وہ ساری خوشی، وہ معصوم سا غرور مٹی میں مل گیا تھا۔ اسے اچھی طرح ادراک ہو گیا تھا کہ مردوں کی بنائی اس دنیا میں تنہا بے بس و بے کس عورت کو بس دو ہی مرتبے دینے کو مرد آگے بڑھتا ہے، یا تو شکار یا پھر داشتہ بنانے کو۔ وہ سوتیلی ماں کے چنگل سے اس لیے بھاگی تھی کہ وہ اسے شکاریوں کے سامنے شکار کے طور پر ڈال رہی تھی۔ وہ ہراساں تھی، سہمی ہوئی تھی، پہلی بار اس تنگدل دنیا کا سامنا کر رہی تھی، اور شامیر ملا تھا جس نے مرد کا ایک نیا روپ دکھایا تھا، جو اپنی عزت بچانے کی خاطر مجبور اور بے سہارا لڑکی کی مجبوری کو کیش کرنے سے نہیں چوکا تھا۔ اور وہ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھ رہا ہے، کوئی کال گرل یا پھر کسی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بھاگنے والی، دھوکہ کھانے والی لڑکی۔ بے اختیار اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بے دردی سے آنکھوں کو ہتھیلی سے رگڑ ڈالا۔ بھابھی، میں اندر آ جاؤں؟ مومو اور اینی دروازہ نوک کر کے اندر جھانک رہی تھی۔ وہ گڑبڑا سی گئی، پھر فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے لمحے وہ دونوں اندر تھی۔ وہ خود کو بہت پوز کر رہی تھی۔ بھائی، اب یہ سنجیدگی ختم ہو جانی چاہیے، میرا خیال ہے ہمیں اب بے تکلف ہو جانا چاہیے۔ مومو بہت باتونی اور بے تکلف سی تھی، فوراً برش پکڑ کر اس کے بال سلجھانے لگی۔ وہ بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی یار، اب ہماری عمروں میں اتنا بھی فرق نہیں کہ اتنی سوچ وچار کی جائے۔ وہ ذرا خفگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو اس نے گھبرا کر اسے آئینے میں دیکھا۔ نہیں، وہ دراصل میں کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے گھبرا کر صفائی پیش کرنے پر انہیں بہت لطف آیا۔ اینی نے بہت شرارت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں محترمہ، وہ کچھ جاگنگ کے لیے جا چکا ہے۔ اس نے اینی کا اشارہ فوراً سمجھ لیا تھا۔ اس کے دل میں اذیت کی لہر سی اٹھی تھی، مگر پھر بھی اس نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ پھیلائی تھی۔ بات نہیں بن رہی یار، یہ اپنی مومو ہے نا، یہ میری بیسٹ فرینڈ ہی نہیں بلکہ میرے بھائی کی منقوہ بھی ہے، اور نکاح کے بعد فقط آدھے گھنٹے کی ملاقات نے اس کے چہرے کو کلرنگ بنا دیا تھا، اور آپ ہیں کہ پوری رات نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔ بکواس مت کرو، مومو شرمائی تھی، جبکہ اس کی بات پر نیلاش اور یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ خود اینی اب ڈٹائی سے ہنس رہی تھی۔ اور شامی بھائی نے رونمائی کیا دی؟ مومو کو بے حد اچانک یاد آیا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی، پھر لبوں پر زبان پھیر کر بولی،
वो दरअसल इतनी अचानक हुआ ये सब कि मगर उन्होंने उन्होंने वादा किया है कि वो झूठ बोलने में इस कदर अनाड़ी थी कि लहजा साथ नहीं दे रहा था, जुबान लड़खड़ा रही थी और जुमला पूरा नहीं हो रहा था। चलो, जहाँ इतने सारे वादे किए वहाँ एक ये भी सही। मोमो ने हंसकर कहा और उसके बालों को मोटे ऊनी बैंड में जकड़ कर खुला छोड़ दिया। एक तो पता नहीं शामी भाई की रूटीन कब बदलेगी। ऐनी घड़ी देख देख कर बुड़बुड़ाई, फिर उसकी तरफ पलटी। आज तो कम से कम रिकॉर्ड तोड़वा देती। नीचे सब लोग नाश्ते के लिए जमा हैं और वो बाहर हवा खा रहे होंगे। वो कसूरवार ना होते हुए भी शर्मिंदा सी हो गई। नीलाश को ले चलते हैं, उसने मोमो से कहा, जो लिपस्टिक के कलर्स चेक कर रही थी। उसे चुनकर मैरून शेड निकाला। आंटी वो खबर लेंगी कि याद करोगी। और यूं भी सब लोग कभी कभार ही एक टेबल पर जमा होते हैं, इसलिए आज तो दोनों को इकट्ठा ही चलना है। मोमो ने सूरत हाल वाजे करते हुए लिपस्टिक खोली। ये मैं नहीं लगाऊंगी प्लीज, उसने बहुजरत हाथ उठाकर उसे रोका था और वो ठिठकी। क्यों भाई, एक दिन की बल्कि एक रात की दुल्हन है आप, और यूं सादा सा चेहरा लेकर सबके सामने चली जाएंगी। माना कि मसनूई चीजों की जरूरत नहीं, मगर यार लिपस्टिक तो लगा ही लो कम से कम। जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो हम कह सकें कि ये सब मेकअप का कमाल है। एनी बड़े मजे से बोली तो उसे बेबसी से मोमो को देखा, जो जवाबन वो शरारत से शाने उचकाकर उसके होठों पर आउटलाइन खींचने लगी। वो दरवाजा खुला और शामिर अंदर दाखिल हुआ। नीलाश ने आईने में उसका ब्लैक ट्राउजर और ग्रीन लूज टी शर्ट में मलबूस मजबूत लांबा सरापा देख कर फौरन चेहरा झुका लिया था। थैंक गॉड, कम से कम नाश्ते पर तो अब आप पहुंच ही जाएंगे, एनी ने तंज किया तो वो साफ नजरअंदाज करके सीधा बाथरूम में घुस गया। लगता है नीचे से आंटी की डांट सुनकर आ रहे हो। मोमो ने फौरन सरगोशी की और साथ ही एनी को चलने का इशारा भी किया। मेरे ख्याल में अब आपको प्राइवेसी चाहिए होगी, इसीलिए हमें चलना चाहिए। मोमो ने मायने खेज से मुस्कुराहट के साथ कहा तो वो खचल सी हो गई। अगर उसके दिल में चोर ना होता तो वो फितरी रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करती, मगर यहाँ तो हालात ही और थे। वो उठकर बेड के किनारे पर टिक गई। दिल की धड़कनें इस कदर बेतरतीब हो रही थी कि हद नहीं। जो तकरीर रात वो कर चुका था उसकी अजियत अभी भी उसके खून में दौड़ रही थी, पूरे वजूद में सरायत कर रही थी। बाथरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर निकला। इधर उसके वजूद में सनसनाहट सी दौड़ उठी। वो ड्रायर से बाल खुश्क कर रहा था। वो अपने हाथों को गोद में रखे उन पर नजरें जमाए बुत बनी बैठी थी। फकत सांसों की आमदोरफ्त से जिंदगी के आसार दिखाई दे रहे थे। फराह दिली से परफ्यूम अपने ऊपर उंडेलने के बाद वो पलटा, कुर्सी घसीटी और उसके बिलमुकाबिल बैठ गया। उसका दिल जैसे उछल कर हलक में आ लटका। उसे मतोहश और हरासा होकर उसकी जानिब देखा। नीचे नाश्ते की टेबल पर सब लोग जमा हैं, उनमें छोटे चाचू और बड़े चाचू की फैमिलीज और मेरी खाला, उनकी बेटियां। जरा ध्यान से रहना, किसी के साथ कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। कोई बेतकल्लुफ होने की कोशिश भी करे तो उसे नजरअंदाज करो, बल्कि अपने आप को मगरूर साबित करना। और मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, जिसके साथ चाहे बदतमीजी करो, बस आन का ख्याल करना। वैसे उनसे भी फ्री होने की जरूरत नहीं। जितनी जल्दी ये सब तुमसे मुतनफिर होंगे उतनी ही जल्दी मैं कोई फैसला कर सकूंगा। ये सब तुम पर करता है कि तुम कितनी कामयाब होती हो। किस कदर शातिर मर्द है ये। नीलाश के दिल को ठेस सी लगी। कल को ये सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर खुद हर जुर्म से बरी हो जाएगा। सारी दुनिया के सामने ये मुझे बुरा मशहूर करेगा और वो मैं होंगी जिसको मोहरे की तरह इस्तेमाल करके ये बाजी अपने हक में करेगा, और तमाम दर नफरत और हकारत मेरे हिस्से में आएगी। या खुदा, मैंने क्यों नहीं सोचा इन पहलुओं पर पहले। क्या मिलेगा मुझे इस सारे सिलसिले के बाद? कौन सा ठिकाना है मेरा? यहाँ से निकल के कहाँ जाऊंगी मैं? और ये उसने जाने क्या कुछ समझाते शामिर मलिक के खूबसूरत चेहरे पर गुमसुम सी निगाह डाली। काश के इस मर्द का अंदर भी इतना ही खूबसूरत होता। काश ये औरत को कमजोर और बेबस देकर शिकारी की तरह जाल फेंकने वाला ना होता। समझ गई ना? वो पूछ रहा था। हाँ जी, उसे वो मुश्किल आंसू रोके थे। वो इत्मीनान भरी सांस भर के उठ खड़ा हुआ। ब्लैक पैंट और डार्क ब्राउन हाई नेक स्वेटर में उसका ऊंचा मगरूर सरापा नुमाया था। दरवाजे तक पहुंचकर वो मुड़ा, इस्तेजाब से उसे देखा। आओ ना। वो हाइफ सी उठ खड़ी हुई। उसकी टांगों की लर्जिश और उड़ी हुई रंगत शामिर को अचंभे में डाल रही थी। कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, वो कुछ चिढ़ कर बोला। दोनों एक साथ डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो खुशदली से उनका इस्तकबाल हुआ। आन ने फौरन नीलाश को अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठा लिया। ये शामिर की जगह हुआ करती थी। वो लब भेज कर दूसरी कुर्सी घसीटने लगा।
ولیمہ کی تقریب 2 دن کے بعد ہوئی تھی۔ آن کو مسلسل نیلاش کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قدر ہراساں اور خائف کسی کیوں رہتی ہے۔ آنٹی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہو، اینی پرسوچ انداز میں بولی تو انہوں نے اسے گھورا۔ میں اسے کیا کہوں گی؟ اور یہ خوف نہیں ہے، بس وہ خوشی نہیں لگتی، جیسے شامی سے اس کی بن ہی نہ آئی ہو۔ وہ خود سے بھی الجھ گئی تھی۔ اب وہ کھل کر اسے کیا بتاتی؟ آنٹی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھی کرنے کا خیال ستاتا ہو شامی بھائی کو، اور وہ نیلاش کی طرف سے بے پرواہی برت کر اپنی طرف سے خود کو سزا دے رہی ہوں۔ یاد ہے نا، ان کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی ہے، پہلے وہ وہی کام کرتے ہیں جو آپ کی پسند کے خلاف ہو، اور پھر بعد میں خود ہی اسے بگاڑ دیتے ہیں، چاہے خود انہیں جتنا بھی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ مومو نے 100% درست بات کی تھی۔ یہ سب باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ان کا دل بڑے زور سے کانپا تھا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، چھوٹی سی بات ہے، اسے یوں بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اور ویسے بھی نیلاش اتنی معصوم سی ہے کہ رہی سہی کبھی بھی جاتی رہی ہے۔ میں خود بات کروں گی شامی سے، کیا مذاق بنا رکھا ہے اس نے زندگی کا۔ وہ باقی غصے میں آ گئی تھی، اور پھر دوستوں کی محفل سے فارغ ہوتے ہی وہ ان کے روبرو تھا۔ نیلاش کیسی لڑکی ہے شامی؟ انہوں نے اچانک پوچھا تو وہ صرف پٹا گیا۔ واٹ؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سیدھی سی بات میں نے پوچھی ہے۔ وہ بالکل سیریس تھی۔ اچھی لڑکی ہے، وہ کافی توقف کے بعد بولا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی جو بالکل سپاٹ تھے، نہ کوئی مسکراہٹ اور نہ ہی کوئی شوخی اور طمانینت کی لہر۔ تمہاری پسند ہے نا؟ انہوں نے اسی لہجے میں دوبارہ پوچھا۔ آن، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اسے احتجاج کیا، مگر وہ انسنی کر گئی۔ شامی، تم اب بچے نہیں ہو۔ یہ سب باتیں تم بڑے آرام سے پہلے بھی مجھے بتا چکے ہو۔ میں تم سے بہت ضروری بات کہنا چاہتی ہوں، انہوں نے سختی سے پر لہجے میں کہا تو وہ استجاب سے انہیں دیکھنے لگا۔ کون سی بات؟ شامی، یاد ہے نا تم نے قسم کھائی تھی کہ اب تم میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرو گے اور مجھے کوئی دکھ نہیں دو گے؟ وہ بڑے سکون و طمانینت سے پوچھ رہی تھی۔ اسے غائب نے آگے سے سر ہلایا۔ بس پھر مجھے نیلاش کی ذات سے کوئی دکھ مت دینا، انہوں نے سابقہ انداز میں کہا تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی آن؟ وہ مصنوعی حیرت سے پوچھنے لگا۔ میں تمہیں سدا خوش دیکھنا چاہتی ہوں شامی، اور نیلاش سے مجھے کوئی پرخاش نہیں، وہ مجھے میری بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ اسے کوئی دکھ مت دینا شامی، اور ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری کوئی زیادتی اس پر نہ دیکھوں۔ جس طرح اسے اپنایا ہے اسے وہ مقام بھی دو جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ بہت اٹل سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ بت بنا سنتا رہ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم شروع سے ہی ایسے ہو کہ میری پسند کے خلاف چیز حاصل کرنے کے بعد میرے دکھ اور احساس میں کمی کرنے کی خاطر تم اس چیز کو تباہ کر دیتے تھے۔ مگر ایک بات تم چاہے لکھ لو، میں یہ بات کبھی بھی پسند نہیں کروں گی، خصوصاً نیلاش کے معاملے میں، کیونکہ میں اس کی ماں بھی ہوں۔ اب انڈرسٹینڈ؟ انہوں نے بڑے سکون سے بات ختم کر کے اس سے پوچھا۔ یس۔ وہ بدقت تمام اتنا ہی کہہ پایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا خون تپنے لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے قسم سے نہیں بلکہ ایک مستقل عذابوں کے سلسلے سے باندھ رہی ہیں۔ کیا میں سمجھ لوں کہ تمہیں اپنی قسم یاد ہے؟ آن نے ٹٹولتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا جو سرخی مائل ہو رہا تھا۔ میری طرف سے آپ مطمئن رہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا، مگر اس نے کبھی ایسی کوشش کی تو میں اسے روکوں گا بھی نہیں۔ اس کے سرد و سپاٹ لہجے نے انہیں سن کر دیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سمجھ گئی کہ واقعی بات کچھ ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ تھکے تھکے سے انداز میں بستر پر گر پڑی۔ تو اب تم اسے مہرا بناؤ گے؟ کیوں تم سائیکی کیس بنتے جا رہے ہو شامی؟ میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے پہلو تہی نہیں کی۔ ایک تم ہی تو میری زندگی کا سہارا تھے، مگر اب میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ بہت کڑلی مت مانی تم نے، انہوں نے اٹل انداز میں سوچا تھا۔ ان کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں پھیلی ہوئی تھی۔ نیلاش، انہوں نے گمسم بیٹھی نیلاش کو بے ساختہ پکارا تھا۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ادھر آؤ بیٹا، وہاں کیوں بیٹھی ہو اکیلی؟ وہ نیچے لان میں نرم دھوپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور نیلاش ٹیرس پر تھی۔ انہوں نے اس قدر پیار سے بلایا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے چلی آئی اور کین کی کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تفکر سے دیکھا تو اس کا جی چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ نفی میں سر ہلایا۔ گھر والے یاد آ رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ اسے فوراً گھبرا کر انہیں دیکھا تو انہیں اس کی سہمی صورت پر ترس آنے لگا۔ شامی کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کریدنے والے انداز میں پتہ لگانا چاہا تھا۔ اچھے ہیں، وہ اٹکی۔ ہفتہ بھر کی دلہن کی ہراساں و متوحش تاثرات اور حیا کے رنگوں سے عاری چہرے نے انہیں عجیب سی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ السلام علیکم۔
اینی، مومو اور فرزین آپی بھی آ گئی تھی اور ساتھ میں طلحہ بھی تھا۔ وعلیکم السلام، آن نے فوراً خوشدلی سے جواب دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ مومو ان سے لپٹی تھی، اینی وغیرہ کا پورشن تو ساتھ ہی تھا، مگر مومو ذرا دور رہتی تھی، اس لیے ہفتے میں ایک آدھ بار ہی آنا ہوتا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر تم کب آئی ہو؟ انہیں بابدولت جا کر لائے ہیں، طلحہ شاہانہ انداز میں بولا، اور ادھر کہہ کے آئے ہیں کہ میلاد کی تقریب ہے۔ اب چچی جان سوچ رہی ہوگی کہ صرف مومو کو ہی کیوں بلایا ہے۔ اینی نے لقمہ دیا تھا۔ اب ہر ایک کے دماغ کا سائز تمہارے جتنا نہیں ہوتا۔ میری چچی جان خاصی عقل مند واقع ہوئی ہیں۔ طلحہ نے آرام سے اینی کو چڑھایا تھا۔ آہا، یہ میری چچی جان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اب وہ صرف ہماری چچی ہیں، آپ کی ساس تو ہیں۔ وہ فوراً چمک کر بولی تھی، اب بس بھی کرو۔ فرزین آپ ہی قدرے سنجیدہ ہی سی تھی، ویسے بھی وہ میرڈ تھی، اس لیے میچور سی تھی۔ سہیل نہیں آیا ابھی؟ آن ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں، ابھی فون آیا ہے، کل آئیں گے، انہوں نے اپنے شوہر کے متعلق بتایا۔ وہ شامیر کی شادی کے سلسلے میں میکے آئی تھی۔ اور نیلاش، تم بھی کبھی آ جایا کرو، ابھی ساتھ گھر ہے تو حال یہ ہے، اگر دور ہوتی تو شاید سالوں تمہاری صورت کو ترستے۔ فرزین آپی کے گلے پر وہ شرمسار سی ہو گئی۔ ہاں تو اور کیا، یہ اپنی آپی ہی کو دیکھ لے، قریبی سسرال کا یہی تو فائدہ ہے، جب جی چاہے ٹپک پڑو میکے میں، اور جب ذرا تبدیلی آب و ہوا کا موڈ ہو واپس سسرال۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی طلحہ بول اٹھا تھا۔ اس کے شریر انداز پر سب ہنس دیے۔ فرزین آپی نے اسے ذرا سا گھور کر دیکھا تو وہ جان بن کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ویسے آپ بولتی نہیں ہے کیا؟ وہ اچانک خاموش بیٹھی نیلاش سے مخاطب ہوا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ جی نہیں۔ ارے واہ، اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ یعنی آپ نہیں بولتی اور بتا رہی ہیں جی نہیں؟ اس کی بات پر سب کو ہنسی آ گئی، وہ خجل سی ہو گئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، پھپھو مٹھائی بانٹے، پورا ایک جملہ بولا ہے انہوں نے۔ وہ شرارت پر اترا ہوا تھا۔ اب یوں تنگ نہ کرے بھائی، اینی نے فوراً نیلاش کی سائڈ لی تھی۔ اجی، میں کیا کسی کو تنگ کروں گا؟ کیوں مومو جی؟ اسے بڑے سٹائل سے جھک کر مومو سے پوچھا تو وہ جھیم گئی۔ آنٹی، دراصل ہم لوگ آئے ہیں نیلاش کو لینے، یہ طلحہ بھائی لے جا رہے ہیں ہمیں سی فوڈ کھلانے۔ اینی نے جلدی سے اجازت نامہ لینا چاہا، اسے معلوم تھا کہ طلحہ کی شوقیاں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ہاں ہاں ضرور، ویسے بھی ہر وقت گھر میں بند رہتی ہے۔ انہوں نے فوراً اجازت دے دی تھی۔ شامیر کے تیور تو وہ دیکھ رہی تھی۔ ابھی شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا کہ وہ فیکٹری جانے لگا تھا۔ نہیں، نیلاش نے فوراً گھبرا کر انکار کر دیا، میں نہیں جاؤں گی۔ واٹ؟ بھائی ریکارڈ قائم ہو گیا پھپھو، یعنی دنیا میں آج میں نے ایسی لڑکی دیکھ لی جو آؤٹنگ پر جانے سے انکار کر رہی ہے۔ واہ میرے مولا، تو بھی کیسے کیسے کرشمے دکھاتا ہے۔ طلحہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ موموز کی بک بک کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے الجھنے لگی۔ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ ایک وہ کیا کم تھے ہٹلر اعظم، وہ تو اپنے کمرے سے نکل آئے تو غنیمت ہے، اور آپ بھی انہی کے نقشے قدم پر چل رہی ہیں۔ نیلاش، چلی جاؤ چندا، تھوڑا دل بہل جائے گا۔ آن کے لہجے میں پیار بھری تنبیہ تھی۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نہیں جانتی مجھ پر کیسی پابندیاں ہیں، اب یوں ہی سوچتی رہو گی تو ہم جا چکے ریسٹورنٹ، اور بھائی کے ارادے ہر منٹ بعد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اینی نے طلحہ کا مذائقہ اڑاتے ہوئے نیلاش کو یوں سوچوں میں ڈوبنے پر ٹوکا، اور اس کے جھوٹ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ابھی تک میری ایک ہی منقوہ ہے اور میرے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ بڑے مزے سے بولا تو آنٹی فوراً بول اٹھی، خدا نہ کرے کہ کوئی تبدیلی آئے، ذرا سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ نیلاش، اٹھو بیٹا، ہری اپ، ڈریس چینج کرو اور ذرا گھوم پھر آؤ۔ انہوں نے خاموش بیٹھی نیلاش کو کہا۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر کی طرف بڑھی۔ مومو اور رینی اس کے ساتھ تھی۔ فرزین آپی کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ پھپھو کیا بات ہے، یہ نیلاش بڑی گمسم سی رہتی ہے، نہ کوئی بات کرتی ہے نہ ہنستی ہے۔ ان کے انداز میں تفکر تھا۔ ایک تو نندوں کو بھابھیوں کی ہر بات کھٹکتی ہے، اگر وہ باتیں کرتی اور بعد میں بات ہنستی تب بھی یہ کہتی ہائے کتنا بولتی ہے، اور اس کی تو بتیسی ہی اندر نہیں جاتی، دماغ کھا جاتی ہے بندے کا۔ طلحہ بہت شرارت سے آپی کو چڑھا رہا تھا۔ پھپھو بے ساختہ ہنسی۔ تمہیں تو بس یہ لطیفے ہی آتے ہیں، فرزین آپی نے اسے گھور کر کہا۔ ہاں تو معلوم ہے نا مجھے، وہ بڑے مدبرانہ انداز میں سر ہلا کر بولا تو وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ پھپھو آپ بھی چلیں کیکڑے کھانے، طلحہ نے آن کو شاندار آفر کی تو وہ ہنس دی۔ فرزین آپی نے ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہیں کو مبارک ہو یہ جھینگے اور کیکڑے۔ طلحہ کی شوخیوں میں نیلاش والی بات وہیں رہ گئی تھی، مگر آن فرزین آپی سے سارا معاملہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، اور اب انہیں طلحہ وغیرہ کے جانے کا انتظار تھا۔
थोड़ी देर में वो तीनों आ गई। वेलवेट के सूट में बलबूस वो खामोश सी बहुत अच्छी लग रही थी। चलो भाई, एनी को ज्यादा ही जल्दी थी। आप भी चलें। नीलाश ने बहुत हिम्मत करके फरजीन को मुखातिब किया था। उन्होंने बहुत प्यार से उसका हाथ थाम लिया। मैं तो पप्पो के पास बैठूंगी, तुम लोग जाओ और इंजॉय करना, खूब जल्दी मत बचाना। गाड़ी में एनी उसके पीछे बैठी थी, जबकि मोमो फ्रंट सीट पर विराजमान थी। गाड़ी तलहा तलहा गाड़ी में रोड पर ले आया। चलो भाई, कहाँ का इरादा है? तलहा बड़े मूड में था। उसे बतौर खास मोमो की तरफ झुककर पूछा तो एनी ने कोहनी से नीलाश को ठोका दिया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। यूं करते हैं कि रावल डैम चलते हैं, घूमेंगे कुछ देर, उसके बाद वहीं रेस्टोरेंट में कुछ ले लेंगे। उसे शायद पहले ही सोच रखा था। और वो सी फूड, एनी ने एहतजाज किया, वो फिर सही, उसकी जगह आइसक्रीम खा लेना। तलहा ने हरी झंडी दिखाई तो वो सुलग उठी। इतनी सर्दी में मरना है ना? भाभी, आप अपनी चॉइस बताएं। तलहा ने नीलाश को मुखातिब किया था। वो मुस्कुरा दी। जहां आप लोग चलेंगे वही ठीक है। देखा, ये क्वालिटी चाहिए थी शामी को। जी सरकार, जैसी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहें वाली। वो फौरन मोमो से मुखातिब हुआ तो वो हंसी, फिर तलहा को घूरने लगी। फजूल बातें मत करो। नीलाश फिर जल्द सी हो गई। रावल डैम पहुंचकर वो गाड़ी से बाहर निकल आए। मोमो ने नीलाश का हाथ पकड़ रखा था। बोटिंग करेंगी? तलहा उनके हमरा सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछ रहा था। सबसे पहले नीलाश ने सर नफी में हिलाया था। वो हंसा था। कमाल है, ये दोनों तो नहीं डरती। कश्ती कश्ती हिलती है तो मुझे डर लगता है, वो बड़ी मासूमियत से बोली थी। तो बगैर हिलने वाली कश्ती में बिठा दूं आपको? वो शरीर लहजे में पूछ रहा था। जवाबन वो बस हंसी। फिर इन तीनों के लाख मजबूर करने पर भी वो कश्ती में नहीं बैठी, बस पानी के किनारे बड़े बेंच पर बैठी उन तीनों को हंसते खिलखिलाते देखती रही। एनी और मोमो उसे देखकर हाथ हिला रही थी। एक मरतबा उसे भी हाथ हिला दिया। काश मेरी जिंदगी भी इतनी भरपूर होती, कोई डर कोई खौफ ना होता, हर पल कुछ छिन जाने का, पांव तले से जमीन और सर से आसमान छिन जाने का। काश मैं भी यूं दिल खोल कर हंस सकती। वो सफेद बादलों पर निगाह जमाए गुमसुम सी बैठी थी। लो भाई, उनके मुराकबे का टाइम तो हो गया है। तलहा धप से बेंच पर बैठते हुए बोला तो वो बुरी तरह चौंकी और फिर शर्मिंदा हो गई। उसे पता भी नहीं चला था और वो तीनों आ गए थे। भाई, अब ऊपर चले ना? एनी ने तलहा को उठाना चाहा। मेरा तो अभी टाइम नहीं आया, तुम्हें जल्दी है तो तुम चली जाओ, वो बेपरवाही से बोला। मोमो ने फौरन उससे घूरा था। कितनी फजूल बातें करते हो तुम। फिर वो नीलाश से मुखातिब हुई। चलो ऊपर से जाकर रावल डैम देखते हैं, बहुत जबरदस्त सीनरी है। वोट खड़ी हुई। तलहा कैंटीन से चिप्स के पैकेट और स्प्राइट के टिन ले आया था और इन तीनों को पकड़ा दिए। सीढ़ियां चढ़ के वो लोग ऊपर आ गए। सच्ची मेरा तो दिल चाहता है यहीं रह जाऊं। एनी रेलिंग पर कोरिया टिकाए सफेद बादलों पर नजरें जमाए हसरत से बोली, अगर ये वसीयत है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐन पानी के दरमियान तुम्हारा मकबरा बनवाऊं। तलहा ने उसे भरपूर तसल्ली दी तो वो झुरझुरी लेकर रह गई। तुमसे तो बात करना जुर्म है। नीलाश को उनकी बातें, लड़ाई और शोखियां लुत्फ दे रही थी। काफी देर वो लोग खाते पीते टहलते रहे। फिर तलहा आकर नीलाश के पास खड़ा हो गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी नंद साहिबा को थोड़ी देर के टहलाने के लिए ले जा सकता हूँ, अगर नागवार खातिर ना गुजरे तो। वो बड़े महज़िबाना अंदाज में इजाजत दे रहा था। नीलाश को हंसी आ गई। एनी और मोमो दोनों हाथ हिलाकर पीछे से इनकार करने को कह रही थी। उसे तलहा की मिस्कीन सी शक्ल पर तरस आ गया। वो हंसी। ले जाओ, क्या याद करोगे? शुक्रिया। वो फौरन झुका था। वो मोमो के शदीद एहतजाज के बावजूद उसे लिए सीढ़ियां उतरता चला गया। वो एनी की तरफ देखकर हंस दी, फिर बोली, बहुत दोस्ती है दोनों में। ये दोस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत है, और मोहब्बत भी तलहा की है। सिर्फ मोमो की खातिर भाई ने जॉब छोड़कर अबू का बिजनेस संभाला है, वरना तो सब कहकर थक गए, मगर भाई पर असर ही नहीं होता था। मोमो ने पहली शर्त ही रुखसती की ये रखी थी कि भाई बिजनेस संभाले, और अब अगर शामी भाई इतनी जल्दी ना करते तो दोनों की इकट्ठी शादी होती। एनी उसके साथ चलती इंकशाफात कर रही थी। दोनों अच्छे लगते हैं लड़ते झगड़ते, नीलाश दिलचस्पी से बोली थी। ये बस दिखावा है, वरना भाई जितना ख्याल मोमो का करता है इतना किसी का नहीं करता। एनी ने बड़े तफाकुर से बताया था, फिर एकदम बड़े तजस्सुस भरे लहजे में बोली, और ये शामी भाई कैसे हैं? सच्ची हमें तो बड़ा इश्तियाक है जानने का। पता है लड़कियों से 1 फुट के फासले पर खड़े होकर बात करते थे, मगर आप पर तो इस बुरी तरह उनका दिल आया कि सभी हैरान है। उसकी बात पर नीलाश की रग रग में अजियत उतरने लगी। उसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी, मगर अब कुछ बोलना तो था ना। नहीं, ऐसे तो नहीं है, वो बेबम से अंदाज में बोली तो एनी ने झुंझलाकर उसे देखा। वही तो पूछ रही हूँ कि कैसे हैं, और रोमांस करते हुए कैसे लगते हैं। उसके इस कदर पुरिश्तियाक अंदाज पर वो ना चाहते हुए भी हंस दी। फिर रेलिंग पर बाजू टिकाकर पानी पर नजरें दौड़ाते हुए बोली,
वैसे ही लगते हैं जैसे किसी माकूल से आदमी को लगना चाहिए। और ये माकूल से आदमी कैसे लगते हैं? अब की बार वो चिढ़कर बोली। वैसे ही जैसे सब लगते हैं। नीलाश ने बरजुस्तगी से कहा, फिर बेसाख्ता जोर से हंसी। एनी को भी हंसी आ गई। तुम हंसा बोला करो, अच्छी लगती हो अपनी अपनी सी। एनी ने बहुत दोस्ताना और मुखलिसाना अंदाज में उसका हाथ अपने हाथ में जकड़ा तो उसे मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। काफी देर वो यूं ही हल्की फुल्की बातें करती टहलती रही। टाइम देखो जरा, शाम पड़ रही है और रोमियो जूलियट गायब है और मुझे सख्त भूख लग रही है। एनी तिलमिला रही थी। थिंक ऑफ एंजल एंड ही इज देयर। तलहा फौरन ही नमूदार हो गया था। वो दोनों डर सी गई। एनी फौरन तलहा पर उलट पड़ी। भाई तुम्हारे लिए तो डेविल ही बेस्ट है। और तुम एक मरतबा घर चलो, फिर देखूंगी मैं तुम्हें। साथ ही उसे मोमो को धमकाया तो उसे फौरन कानों को हाथ लगाए। अब जल्दी करो, कुछ खा पी ले। तलहा यूं बोला जैसे महजूनी की वजह से लेट हुए हो। वो चारों सीढ़ियां तय करते पौधों की सब्ज बाड़ों में से गुजरते नीचे रेस्टोरेंट में चले गए। वहां से फारिग होने तक अंधेरा छा चुका था। बहुत देर हो गई है ना? नीलाश ने तफक्कुर से गाड़ी से बाहर झांक कर कहा तो मोमो मजाक उड़ाने लगी। तो क्या हुआ? तुम तो यूं कह रही हो जैसे तुम कोई कॉलेज गर्ल हो, जैसे अब घर से डांट पड़ने का खदशा हो। अब तुम्हें क्या बताऊं? शामिर का तहकुमाना लहजा उसके समातों में उतर आया था। उसका दिल अपनी ताल बदल रहा था। एनी आइसक्रीम खाओगी? तलहा को एनी की नाराजगी का पूरा पूरा एहसास था। वैसे तो मुझे नहीं खानी थी, मगर अब जरूर खाऊंगी ताकि तुम्हारा एहसास जुर्म कम हो जाए। उसकी खफगी और एहसान जताने के अजीब से अंदाज पर उन सबको भी हंसी आ गई। तलहा, देर हो रही है। नीलाश ने दबे दबे लफ्जों में उसे याद दहानी कराई तो वो हंस गया। फिर बड़े मजे से बोला, कमाल है भाभी, लगता है शामी का बहुत डर है आपको। भाई उसकी हिटलराना तबा को तो बहुत तकवीत मिलती होगी ये डरा सहमा अंदाज देखकर। एक तो तुम लोग बस। वो आजिज आकर फिर से बाहर झांकने लगी। जो होगा देखा जाएगा। अब इन लोगों को तो मौका चाहिए एंजॉयमेंट का। हालांकि रेस्टोरेंट में भी आइसक्रीम खा सकते थे। इतनी ठंडी होगी मैं नहीं लूंगी। नीलाश ने साफ इनकार कर दिया था। ओ ले ले यार, घर चलकर कंबल लपेट कर हीटर के सामने बैठकर खाइएगा। तलहा ने जबरदस्ती बड़ी सी कोन उसके हाथ में थमाई थी और फिर ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। खुद उसने कोन नहीं ली थी। भाई गाड़ी ड्राइव करूंगा या कौन खाऊंगा? ये अपनी मोमो के पास है ना, और वैसे भी जूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। उसने नीलाश के पूछे पर जवाब बताया था और अब मोमो खुद भी खा रही थी और उसे भी खिला रही थी। निरे बहाने। एनी जोर से बुड़बुड़ाई थी। नीलाश हंस दी। घर आए तो आन और फरजीन आपी पोर्श में ही मिल गई। तलहा एनी और नीलाश को उतारकर मोमो को छोड़ने चला गया। मैं तो थक गई हूँ कसम से। 2 घंटे रावल डैम पर टहलाई की है। उसे पुप्पो के अंदर चल के बैठने के ऑफर के जवाब में थकन की शानदार वजह बताई थी। वो हंसी। इन दोनों के जाने के बाद वो आन के साथ अंदर आई। एंजॉय किया तुमने? उन्होंने नीलाश के शाने पर हाथ रखते हुए पूछा तो वो सोफे पर गिर सी गई। बहुत। और तलहा की कंपनी में तो बोरियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोमो और एनी भी बहुत अच्छी है। उसने खुलूस से तारीफ की थी। फिर जूतों के स्ट्रैप खोल कर सीधी हुई तो नजर शामिर मलिक से जा टकराई, जो उसके एन सामने सोफे पर नीम दराज अंदाज में टीवी लगाए बैठा था, मगर निगाह उसी पर थी। उसकी रंगत एकदम बदल गई। आन बगौर उसके तासुरात देख रही थी। वो फौरन जूते हाथों में पकड़कर उठ खड़ी हुई। खाना लग रहा है, अब खा के ही जाना ऊपर। आन ने प्यार से कहा तो वो उन्हें देखने लगी। वो हम लोग खा के आए हैं। वेरी गुड, अच्छा है, कभी कभार बाहर भी खा लेना चाहिए। आन ने फौरन कहा तो वो उनसे माजरत करती कमरे में आ गई। उफ, अब एक नई मुसीबत, पता नहीं क्या कहेंगे। उसके दिल में अजीब सी पकड़ धकड़ शुरू हो गई। वो इतनी नर्वस हुई थी कि इतनी सर्दी में नंगे पैर ऊपर ऊपर तक आई थी। वो हीटर जलाने लगी। पता नहीं मैं इस शख्स से इतनी खौफजदा क्यों हूँ। मैं उसकी मजबूरी हूँ, वो मेरी मजबूरी नहीं, लेकिन वो मेरी जरूरत तो था। चंद दिन का ही सही, मगर ठिकाना तो मिल गया है ना सर छुपाने के लिए। उसका दिल इस कदर घबरा रहा था कि कभी वो बिस्तर के किनारे पर बैठती और कभी कारपेट पर इधर उधर टहलने लगती, मगर इस घड़ी को आना था और आ कर ही रही। वो सर्द तासुरात समेत शूज उतारता उसकी जैसी जान ही निकाल गया। मैंने तुमसे कहा था कि किसी से बेतकल्लुफ मत होना और ना ही ज्यादा बात करने की जरूरत है किसी से, और तुम उनके साथ आउटिंग के लिए निकल पड़ी। वो सख्त उसीले लहजे में कह रहा था। उसे अपनी टांगों से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। वो सोफे पर टिक गई। तुम अपने लिए भी मुश्किलें पैदा कर रही हो और मेरे लिए भी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो बरहमी से स्वेटर उतारते हुए कह रहा था। मैं तो नहीं जा रही थी, वो लोग खुद ही आ गए।
उसने सफाई पेश करने की मकदूर भर कोशिश की मगर वो माफ करने के मूड में नहीं था। तुम्हारे दिमाग में मेरी बात नहीं आई थी, इस तरह करोगी तो खुद भी इसी अजाब में फंसी रहोगी और मुझे भी मुसीबत में फंसाए रखोगी। वो इस कदर तलखी और बेजारी से बोल रहा था कि वो दुख के हिसार में घिरी तासुफ से उसे देखने लगी। किस कदर खुदगर्ज था ये शख्स, कितनी आसानी से वो अपना मकसद हासिल करने के बाद उससे छुटकारा पाने की सोच रहा था। क्या हैसियत थी उसकी नज़र में, उसकी शतरंज पर पड़ा मोहरा थी वो उसके लिए, जिसे वो जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक चल ले। उसके दिल में यकायक तलखी की लहर उठी थी। उस शख्स ने उसे यूं चारा डालकर शिकार किया था कि वो कुछ सोच भी नहीं पाई थी। मगर अब वो उसके साथ कैसा सलूक कर रहा था, कैसे धुतकार रहा था। मैं नहीं जा रही थी मगर आन ने मुझे। वॉट? अभी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि वो मुश्तिल हो उठा। माइंड यू, वो सिर्फ मेरे लिए आन है। तुम्हें नित नए रिश्ते बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें फ़कत मैं आन कह सकता हूँ। तुम्हें यहाँ किसी के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी औकात याद रखो। कल कलाम को किसी को पता चल गया तुम्हारी असलियत का तो एक अजियत सी थी जो उसकी रगों को काटती चली गई थी। दुख इस कदर शदीद था कि वो पलक झपके बगैर एक टक उसे देखती चली गई। जिल्लत और शर्मिंदगी की इंतहा हो गई थी उसके लिए। वो मजीद कुछ कहे बगैर बाथरूम में घुस गया। उसने सुलगती आंखों को मूंदा तो गरम गरम पानी बह निकला। उसका जी चाह रहा था कि बस इस लम्हे वो मर जाए। ए काश, काश के इस रात में उस संगदिल और पत्थर इंसान से ना टकराई होती। किस कदर घटिया जहनियत है बज़ाहिर मुहज़्ज़िब नजर आने वाले इस शख्स की। और निराश हैदर, तुम क्यों उस शख्स के सामने सुरनगू हो रही हो? अगर दरबदरी ही तुम्हारा मुकद्दर ठहरा तो फिर इस शख्स के सामने यूं गिड़गिड़ाने और कमजोरी दिखाने का क्या फायदा? और तुम उस शख्स की मजबूरी हो, तुम्हें सहारा देने का तो महज बहाना है, वरना तो वो इंतहाई शातिर अंदाज में गेम खेल रहा है। वो जहर आलूद अंदाज में सोच रही थी। वो मासूम थी, उसकी सोचों को जहरीला करने वाला यही शख्स था। उसने शिद्दत गिरिया से तपती आंखों से बेखबर सोए शामिर मलिक को देखा था। अब मैं भी देखूंगी कि तुम कहाँ तक मुझे मोहरा बनाते हो शामिर मलिक। तुम्हारी हर चाल तुम ही पर ना उलट दी तो नाम बदल देना मेरा। उसकी आंखों में शामिर मलिक के लिए हकारत और नफरत सिमट आई थी। और अगले ही रोज सब ने देखा कि नीलाश हैदर ने एक नया रूप धार लिया था। दरो दीवार उसकी खिलखिलाहटें सुन रहे थे। लॉन उसकी मुतरन्नम हंसी से गूंज रहा था। गाड़ी से उतरता शामिर ठिठक कर रह गया। वो लॉन में तलहा के साथ बैडमिंटन खेल रही थी जबकि एनी अपनी बारी के इंतजार में और आन गेम एंजॉय करने के लिए बैठी थी। शामी आ जाओ। तलहा उसका वाहिद कज़न था जिससे उसकी इंतहाई दोस्ती भी थी। आन ने भी उसे आवाज़ दी तो नाचार वो अंदर जाने के बजाय लॉन में चला आया। आ जाओ यार मेरी तरफ, ज़रा इन लड़कियों को मेन पावर दिखा दी जाए, तलहा ने उसे ऑफर की, जो वो अनसुनी करके चेयर घसीट कर बैठ गया। हाँ, आधे घंटे से तुम्हें मेन पावर दिखा नहीं पाए और तुम्हारी टीम में रोब की शमूलियत से मेन पावर नहीं आ जाएगी, वो और ही बात होती है। नीलाश ने शटल कॉक उठाते हुए ठंडे मीठे तंजिया अंदाज में कहा तो आन से बात करते शामिर को अपनी कनपटियां सुलगती महसूस हुई। कितनी अच्छी लग रही है ना यूं हंसी खेलती, है ना? आन ने एकदम उसे पूछ लिया था, जो सर्द निगाहों से नीलाश को देख रहा था। ये उम्र है इसकी इन हरकतों की। आन, आपको इस पर सख्ती करनी चाहिए। उन्होंने इस हिजाबिया अंदाज से उसे देखा। ऐसा क्या कर दिया इसने? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो इतनी अच्छी बीवी मिली है, एनी पटाख से बोली थी। शामिर ने उसे घूर कर देखा तो वो सहम कर फौरन उठ खड़ी हुई। आ जाओ एनी, अब हम दोनों तलहा को दिखाएंगे कि विमेन पावर क्या होती है। नीलाश से बात करते हुए उछड़ती इस्तेजाइया निगाह शामिर पर डाली थी। वो उसके अंदाज पर सुलग कर रह गया। वो दोनों फिर भरपूर शॉट्स लगा रही थी और अकेला तलहा भाग भाग कर निढाल हो रहा था। ये साजिश है। वो हाँफता हुआ धप से घास पर बैठ गया। नीलाश बेसाता हंसी हुई आकर चेयर पर बैठ गई। तो तुम क्या समझती हो, अल्लाह मियाँ ने साजिशों की पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ तुम मर्दों को ही दे रखी है मिस्टर? अब औरतों में भी शोर जाग उठा है कि वो तुम मर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। शामिर तो पागल हुआ जा रहा था उसके इस कदर गैर यकीनी अंदाज पर। उसके अंदाज और अल्फाज तो और ही कहानी बयान कर रहे थे। वो बड़ी बेनियाजी से आन से बेतकल्लुफ अंदाज में बातें कर रही थी। और इस रात शामिर मलिक ने इंतहाई फैसला करने का सोच लिया था और वो कर भी डालता, मगर अगले रोज आन को जबरदस्त हार्ट अटैक हो गया। यार शामी, अब तुम घर जाओ, मैं और अम्मी हैं इधर और फिर अबू अबू भी आ जाएंगे। तलहा ने उसकी दुगरगू हालत देख कर नरमी से उसके शाने पर हाथ रख कर कहा
तो वो सुर्ख होती आंखों से उसे देखने लगा। पिछली 3 रातों और 3 दिनों से वो सोया नहीं था, मगर घर जाने को राजी नहीं था। तुम जाओ, मैं यही हूँ, वो सपाट लहजे में बोला था। शामी, वो मेरी भी फूफो हैं, तलहा ने तासुब से उसे याद दिलाया। जवाबन वो फौरन जताने वाले अंदाज में दो टोक बोला था, मगर मेरी वो माँ है, आप मुझे घर जाने का मत कहना। उसके अंदाज पर तलहा खामोश रह गया। शाम को आन को इमरजेंसी रूम से प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। अब उनकी तबीयत कुछ संभल रही थी और शामिर मलिक बस यहीं तक बर्दाश्त कर पाया था। आन को सामने पाते ही वो सिसक उठा। ये क्या कर दिया आपने आन? आप मेरे साथ ये नाइंसाफी कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं कि मैं आपके बगैर कुछ कुछ नहीं। फिर भी उन्होंने नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरा। उफ शामी, मैं तो समझी थी कि तुम बड़े हो गए हो, मगर तुम तो अभी तक वही शामिर हो। डरे सहमे से उनके लहजे में उसके लिए प्यार भरा था और शामिर ने फौरन एतराफ कर दिया था। नहीं आन, मैं बड़ा नहीं हुआ, और मुझे अब भी आपकी ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। वो इस वक्त अक्खड़ और गुस्सीले शामिर से बिल्कुल मुख्तलिफ एक डरा सहमा सा बच्चा दिखाई दे रहा था। वो सख्ते की कैफियत में नहीं। शामिर, मैंने तो तुझे इतनी मोहब्बत दी है, फिर ये डर, ये खौफ तेरे अंदर कहाँ कुंडली मारे बैठा बैठा रह गया? आन, आपने जो मोहब्बत मुझे दी है, उसी ने तो मुझे इस कदर कमज़ोर बना दिया है। अब एक लम्हे को भी सोचूं कि आपके बगैर, तो फिर बस जान निकलने लगती है। आप मेरा सब कुछ है और मैंने आपको इतना तंग किया, फिर भी आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। ये सब आपका कसूर है आन। आपने मेरी हर जायज़ और नाजायज़ बात खामोशी से मान ली। कभी तो आप माँ की तरह मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देती, मगर आपने तो माँ से भी ऊंचा मकाम बना लिया है अपना। और मैंने कभी आपको कोई खुशी नहीं दी, और बस यही सोचता रहा कि किस तरीके से आपको तंग करूं कि आप मुझे मारें, मुझ पर चीखे चिल्लाएं। वो भारी आवाज में सुर्ख चेहरा लिए बमुश्किल जब्त किए पता नहीं क्या कहे जा रहा था, कौन कौन से एतराफात किए जा रहा था। वो धक सी सुनती रह गई। अब मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा, बस आप एक दफा ठीक हो जाएं। वो कुर्सी बिस्तर पर के नजदीक करके सर उनके हाथ पर रखे नीम वहाँ बैठा बैठा था। वो मुस्कुराई तो कितने ही आंसू उनके रुखसारों पर फिसल गए। बस अब तुमने वादा कर लिया है मुझे तंग ना करने का, तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने तो लम्हा भर में उनकी हर कसक दूर कर दी थी। उन्होंने नरमी से उसके बाल संवारे थे। नीलाश नहीं आई? उन्होंने अचानक पूछा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल मची। अभी तो एक और गम पड़ा था आन के लिए। वो आई थी, आप उस वक्त इमरजेंसी में थी, उसने आहिस्तगी से कहा था। तभी तलहा शोर मचाता आ गया। साथ छोटी चची, बड़ी चची, छोटे चचा और बड़े चचा चचा थे। आप तो बस इस खबीस शख्स की होकर रह गई हैं। तलहा के शिकवे पर सब हंसे थे। शामिर ने घूर कर मसूई गुस्से से उसे देखा। वो आराम से बोला, हाँ तो सही कह रहा हूँ ना मैं। शामी बेटा, तुम अब घर जाओ, बस थोड़ी देर रेस्ट करो, कपड़े बदलो जाकर, 3 दिन से बस यूं ही फिर रहे हो। बड़े चचा ने शामिर का शाना थपक कर शफकत से कहा। तो वो उनकी बात ने टाल नहीं पाया और आन की तरफ मुतवज्जे हुआ, झुक कर उनकी पेशानी चूमी। मैं रात को आ जाऊंगा, उसने बच्चों के से अंदाज में उन्हें तसल्ली दी थी। उसके जाने के बाद बड़ी चची आन से मुखातिब हुई थी। कमाल है आसिया, इस लड़के के कितने रूप हैं। हर बार एक नया अंदाज सामने आता है। कहाँ तो हर वक्त जंग का बगल बजाय रखता था और अब 3 दिनों में बस टूट फूट कर रह गया है। सच में तो हैरान हो रही हूँ। मैं तो हमेशा से कहता हूँ शामिर को समझना बहुत मुश्किल है, और आसिया से उसकी मोहब्बत की गहराई कोई कोई नहीं नाप सकता। हाँ तो ये है कि वो जाहिर भी नहीं करता, मगर उसके हर अमल से जाहिर हो जाता है। छोटे चचा की भी शामिर से खासी दोस्ती थी, मगर ये सब महज अंदाजे ही थे। खुलता तो वो किसी पर भी नहीं था। तुमने तो सचमुच उसकी माँ बनकर दिखाया है आसिया। छोटी चची ने प्यार से आन के माथे पर हाथ रखकर कहा, तो उन्होंने सुकून से आंखें मूंद ली। वो वाकई मेरा बेटा है, उन्होंने हमेशा की तरह दिल में दोहराया था। वो गाड़ी अंदर लाया तो वहीं मोमो, एनी और नीलाश खड़ी थी। अब कैसी तबीयत है फूफो की? एनी के आंसू तो बस पलकों पर अटके रहते थे, और यहाँ तो मामला भी इकलौती प्यारी जान निसार करने वाली फूफो का था। आप ठीक हैं? अब ठीक है वो, उसने आहिस्तगी से कहा और उसके सर पर हाथ फेरता अंदर बढ़ गया। शुक्र है खुदा का, मोमो ने फौरन कहा था। जाओ ना तुम, जरा तसल्ली दे वगैरह दो, कितनी बुरी हालत हो रही है उनकी, और अब उन्हें जाने मत देना। एनी ने नीलाश को धकेला था। तभी फरजीन आपी भी सोहेल के साथ आ गई। अम्मी अबू तो चले गए हैं, आप ही हमें भी ले चले ना।
शामी भाई घर आए हैं अभी, कह रहे थे कि अब पप्पो ठीक है, रूम में शिफ्ट कर दिया गया है उन्हें। अच्छा हुआ शामी घर आ गया, उसे तो हद ही कर दी थी, ना सो रहा था ढंग से और ना खा पी रहा था। आप ही बोली हैं, तुम दोनों चलो फिर, और नीलाश तुम शामी के साथ आ जाना। उन लोगों के जाने के बाद वो गेट बंद करके अंदर चली आई। उससे कितनी दुआएं मांगी थी आन के लिए, हालांकि वो जानती थी कि उस औरत से उसका रिश्ता चंद दिनों तक का है, मगर आन की प्यार और मोहब्बत ने उसे अपना गर्विदा बना लिया था। वो तलहा और रैनी के साथ एक दफ़ा अस्पताल गई थी, तब आन आईसीयू में थी। शामिर ने सख्ती से उसे वहां आने से मना कर दिया था। उसके बाद सबने कई मरतबा उससे अस्पताल चलने का कहा, मगर उसने नरमी से मना कर दिया। प्लीज़ आंटी, मेरा हौसला नहीं पड़ता आन को यूं देखने का। वो थोड़ी देर लाउंज में बैठी रही, फिर किचन में गई, खाना गर्म करके ट्रे में लगाया और चाय बनाकर मग में डाली। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो बिस्तर पर आड़ा तिरछा सर के नीचे हाथ बांधे लेटा था। नीलाश के दिल में उसकी तरफ से एक खौफ सा था। मियाँ बीवी के रिश्ते में बुनियादी चीज़ प्यार, मोहब्बत और एतमाद की फिजा होती है, और उनका रिश्ता मालूम नहीं कैसा था जहाँ उनमें कुछ भी नहीं था, बस एक डर और बेयकीनी सी थी। नीलाश ने दिल कड़ा करके ट्रे उसके पास रखी। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और फिर चंद लम्हों तक यूं ही देखता रहा। आप खाना खा लें, वो मुश्किल अपनी नफरत को अंदर धकेल कर बोली थी। उसकी आवाज़ और आंखों की सोजन से पता चल रहा था कि वो रोती रही है। क्यों, किस लिए? शामिर के अंदर तक हलचल मच गई थी। मेरा दिल नहीं चाह रहा, उसने आहिस्तगी से कहकर करवट बदल ली थी। वो इस कदर मुज़महिल और टूटा हुआ लग रहा था कि नीलाश इससे जाब में गिरने लगी। ये वो शामिर तो नहीं था जो हर वक्त हाकिम वक्त बना दनदनाता फिरता था, जिसकी हर नज़र कहर का मंबा होती थी। वो बस मार देने के दर पे ही होता था। पता नहीं क्या बात हुई थी कि वो रोने लगी। ऊंची आवाज़ में वो एकदम से उठ बैठा और मतोहश निगाहों से उसे देखने लगा। क्या हुआ है तुम्हें? उसे उलझ कर पूछा था। उसकी आवाज़ पर भी उसने रोना बंद नहीं किया, बल्कि रोते हुए वहीं बैठ गई। वो चंद लम्हे उसे देखे गया, फिर लब भेज कर उठा और उसके पास घुटने टेक कर बैठ गया। फिर कदरे तवक्कुफ से बोला, आई एम सॉरी नीलाश, मैं वाकई बहुत बुरा आदमी हूँ, मगर मगर मेरी आन को बदुआ मत देना। वो मेरा सब कुछ है। मैंने तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी अना को ठेस पहुंचाई है, और इसके बदले में खुदा ने मुझे इतना बड़ा झटका दे दिया। मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हारी मजबूरी को कैश नहीं करना चाहिए था, और जिस तरह मैं तुम्हें इस्तेमाल करने के बाद तुमसे छुटकारा पाने की सही कर रहा था, उसकी सज़ा मुझे मिल गई है। मैंने चंद दिन में ही तुम्हारे मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली थी। उसके बावजूद मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। एक रुबाब अलीम ने मेरे लिए हर रस्सी को सांप बना दिया था। मैंने इन 3 दिन और 3 रातों में बहुत सोचा है नीलाश, और हर जगह में ही गलत था। मैंने आन को भी बहुत तंग किया है, लेकिन अब मैंने कसम खाई है कि कभी कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिससे उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। और तुम तो उनसे मोहब्बत करती हो ना, प्लीज़ उनके लिए दुआ करना। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता नीलाश, तुम चाहो तो मुझसे बदला ले सकती हो। मेरी हर ज्यादती का मैंने बहुत घटियापन का मुजाहरा किया है तुम्हारी सादगी और मासूमियत के साथ खेलकर। और अगर अब भी आन के साथ ये सब ना होता तो मैं अब तक तुम्हें डाइवोर्स दे चुका होता। मैं खुद को काबिल माफ़ी नहीं समझता नीलाश। वो साकित बैठी, पत्थर के इंसान को आंसू बहाते देख रही थी। उस शख्स को उसने पत्थर और जालिम इंसान के लकब से नवाजा था, मगर ये उसका कौन सा रूप था कि इतने आराम से उसे अपनी हर गलत हरकत का एहतसाब किया था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो किसी से इतनी मोहब्बत कर सकता है। शादी के कुछ दिनों के बाद ही मैं तुम्हारे मुतालिक सब कुछ जान गया था, लेकिन आन ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, और मैं उनके मुतालिक इस कदर पोज हूँ कि मैं उनकी तुम्हारी तरफ तवज्जो बर्दाश्त नहीं कर पाया। हो सकता है कि मैं तुम्हें कबूल कर लेता, लेकिन जब पहली बार आन ने मेरी डाइनिंग चेयर तुम्हारे लिए निकाली थी, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें आन की मोहब्बत शेयर करने नहीं दूंगा। और तब मैंने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि बिल्कुल ऐसी ही बात रुबाब अलीम ने भी की थी। तब मैंने कितने तनफ्फुर से उसे कहा था कि मोहब्बत तो बस देने का नाम है, और तुम कैसे किसी शख्स की मोहब्बत को सिर्फ अपने आप तक महदूद रख सकती हो। पता नहीं मैं इतना घटिया कैसे बन गया। मैंने कभी किसी को आन के नज़दीक आने ही नहीं दिया, और फिर भी हर पल मेरे दिल में यही वहम रहता है कि कहीं वो भी मम्मी पापा की तरह। उसकी भारी आवाज़ मध्यम सी होकर होकर खो सी गई। नीलाश का दिल पसेज कर रह गया। किस कदर उलझा हुआ शख्स था ये, बज़ाहिर रूड और एग्रेसिव, मगर अंदर से तृष्णा और मोहब्बतों को इकट्ठा करने वाला। मैं मैंने कभी उन्हें बदुआ नहीं दी, और मुझे आपसे भी कोई शिकवा नहीं। खुदा ने मेरी किस्मत में यही सब लिखा था जो मुझे मिल गया। उसे रोती हुई आवाज़ में सादगी से कहा,
تو شامیر نے پہلی مرتبہ اس کی شانوں کو جکڑا۔ کیوں کیوں نہیں کرتی تم کوئی شکوہ؟ کیوں اپنے صبر کی مار مار رہی ہو ہمیں؟ وہ وحشت سے پوچھ رہا تھا، اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ دکھ اور تعصف میں گھری اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑا۔ لیکن میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ نیلاش حیدر، تم جو چاہو فیصلہ کر سکتی ہو اور میں تمہارا مجرم ہوں۔ جو چاہو سزا سنا دینا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، مضطرب و بے چین تھا۔ وہ چپکے سے اٹھ کر باہر ٹیرس پر چلی آئی۔ کتنے سنگ دل ہو تم شامیر ملک، وہی حرکت پھر سے کر رہے ہو۔ سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال کر تم پھر سے مطمئن ہو جانا چاہتے ہو، اور ہمیشہ کی طرح اب ہی فیصلہ کرتے ہوئے تم یہ نہیں سوچ رہے کہ میرا کیا بنے گا۔ تم دعوے دار ہو میرے حالات سے آشنائی کے، پھر کیوں نہیں سوچ رہے ہو کہ میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر رونے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ سردی میں بیٹھی رہی، وہ اسے ڈھونڈتا ہوا ٹیرس پر چلا آیا۔ آن کو دیکھنے چلو گی؟ وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر پہاڑ سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ محض 3 دنوں نے اسے سر سے پیر تک بدل دیا تھا۔ وہ جو اسے اپنی اوقات پہچاننے کا درس دیتا تھا، اب اتنی نرمی، اتنی عاجزی سے بول رہا تھا کہ حد نہیں۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ اتنی سردی میں مت بیٹھو پلیز۔ یہ اس کا لہجہ ہی تو تھا جو اسے رلا ڈالتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شامیر ملک پھر سے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرنے والا ہے۔ وہ اب بھی ویسے پتھر بنی بیٹھی رہی تو شامیر نے جھک کر اس کا یک بستہ ہاتھ تھام کر اسے قریب کیا اور اسے کمرے میں لے آیا۔ تم آن سے ملو گی، انہیں بتاؤ گی کہ تم خوش ہو تو وہ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ابھی انہیں کچھ اور مت بتانا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ تو وہ شرمسار سا ہو گیا۔ اپنے کہے کون سے الفاظ اسے یاد نہیں آئے تھے۔ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر مصیبت کا وقت گزارنے کے بعد وہ اسے کیسے بوجھ سمجھنے لگا تھا، اور اس کی مجبوری اور بے کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا اس نے۔ تم چلو گی نا ساتھ؟ وہ اتنی آس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ نم پلکوں کے ساتھ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کتنے پتھر دل ہو تم شامیر ملک، اب بھی ایک نازک سی لڑکی کی نرم دلی سے فائدہ اٹھانے سے بھی نہیں چوک رہے۔ تم اچھے سے کپڑے پہنو۔ وہ اسے شاید حیران کر کے مارنے کی موڈ میں تھا۔ خود اس نے کاٹن کا براؤن شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، البتہ ہلکی شیپ ویسے ہی بڑی ہوئی تھی۔ 3 دن پرانی جینز اور ٹی شرٹ ہی بدلی تھی بس۔ وہ خاموشی سے الماری سے کپڑے نکال کر تبدیل کرنے چلی گئی۔ وہ دونوں اسپتال پہنچے تو ابھی سب لوگ وہیں موجود تھے۔ وہ بے قراری سے آن کی طرف بڑھا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے نا آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں میں۔ نیلاش بھی آئی ہے؟ وہ بہت خوش تھی اور شامیر ملک ان کی خوشی کا سبب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسے جھک کر آن سے ملتی نیلاش کو دیکھ کر طمانینت بھری سانس لیتی۔ اعتراف جرم کے بعد انسان خود کو کس قدر ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگتا ہے، یہ شامیر ملک کو اب معلوم ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اس کے اعتراف کے بعد اپنا تمام تر گھٹیا پن بہا دیا ہو اور وہ اندر باہر سے پاک ہو گیا ہو۔ یہاں بیٹھو تم آن کے پاس۔ شامیر نے آن کے پاس سے اٹھ کر نیلاش کو وہاں بٹھایا تھا جہاں اس کا یہ عاجزانہ انداز نیلاش کو جذبز کر رہا تھا، وہیں کمرے میں موجود باقی نفوس کو حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہا تھا۔ اس کا نیلاش کے ساتھ سرد مہر رویہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا، ورنہ یہ وہی شامیر ملک تھا جو فقط اپنی ڈائننگ چیئر کسی اور کو دینے پر تباہی مچانے کے درپے ہو جاتا تھا، جا کے آن کے پاس کسی اور کو بٹھا دیتا، وہ بھی اپنی مرضی سے۔ کب تک ڈسچارج کر رہے ہیں آن کو؟ وہ بڑے چچا سے پوچھ رہا تھا۔ اب تو بالکل ٹھیک ہے، بس 3-4 روز تک۔ میں خود بھی تسلی چاہتا ہوں، اس لیے یہی بہتر ہے، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ تو وہ جبڑے بھینج کر گردن موڑ کر نیلاش کے ساتھ ہستی آن کو دیکھنے لگا۔ بھائی تم تو کمال ہی کر رہے ہو شامیر، میں تو تمہیں اور ہی کچھ سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے دوستانہ انداز میں شامیر کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آن اسپتال سے آئیں تو جیسے فقط نیلاش کی ہو کر رہ گئی، حالانکہ اینی ادھر ہی ہوتی تھی اور ہر دوسرے روز مومو بھی آ جاتی، مگر نیلاش سے ان کی وارفتگی کا باعث ان کا لاڈلا شامیر تھا۔ پتہ نہیں آن میں اب بھی آپ کو خوش رکھنے میں کامیاب ہو پاؤں گا یا ہمیشہ کی طرح آپ کی پسند کے مترادف فیصلہ کرنا میری مجبوری بنے گا۔ اس کا دماغ ہر وقت سوچوں میں الجھا رہتا تھا۔ ان دنوں وہ نیلاش سے کترایا ہوا رہنے لگا تھا۔ بات تو پہلے بھی وہ اسے کم ہی کرتا تھا، مگر اب تو نظر اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ اینی اور مومو کے ساتھ ہنسی اور آن کو بہلاتی رہتی اور اس کا ذہنی خلفشار بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کمرے کی ڈسٹنگ کرنے اوپر پہنچی تو وہ کمرے کی دگرگوں حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ خود وہ صوفے پر نیند دراز پڑا تھا۔ کمرے کی فضا گرم اور بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ ناگوار تاثرات کے لیے بیڈ شیٹ جھاڑنے لگی۔
तभी जाने उसे क्या हुआ, वो उठा और उसके पास आकर झटके से बेडशीट उसके हाथ से छीन कर लपाट कर परे फेंकी। वो शुजदर सी खड़ी थी। उसके बाद उसे उसके शानों पर हाथ रख कर उसे धकेला और दीवार के साथ लगा दिया। क्या सोच रही हो तुम? कोई क्यों नहीं कर लेती तुम कोई फैसला? क्यों मुझे इंतजार की सूली पर लटका रखा है तुमने? उसकी वहशत से नीलाश को खौफ आने लगा। उसने चेहरा मोड़कर अपने शाने से लगा रखा था। उसके मजबूत सरापे से उड़ती खुशबू की लिपटें उसकी सांसों में घुल रही थी। मुझे हर वक्त टेंशन रहने लगी है महज तुम्हारी वजह से। तुम्हें जो कुछ फैसला करना है जल्दी करो, या आर या पार। वो दुरुस्त लहजे में कह रहा था। तैश की लहर नीलाश को तपा कर रख गई। उसने शामिर का हाथ झटक कर खुद को उसके हिसार से निकाला था। आप आप इंतहाई सेल्फिश इंसान हैं, वो सदमे से कपकपाती आवाज में कहती दौड़ती हुई कमरे से निकल गई। वो सर थाम कर बिस्तर पर गिर गया। और ये शदीद जहनी जहनी गिरफ्तार और उल्टी सीधी सोचों का ही नतीजा था कि वो अपना एक्सीडेंट करा बैठा था। और तब पहली बार वो आन के गले लगकर उस जालिम और संगदिल शख्स के लिए रो दी थी। ठीक है वो जान, बस हल्की सी हराशें ही तो आई हैं। मैंने काले बकरे का सदका दे दिया है, बला टल गई है। उन्होंने प्यार से उसके बालों को सहलाया था और तब उसी कमजोर लम्हे में उसे आन को सब कुछ बता दिया था। उन्होंने सारी बात सुनकर गहरी सांस अंदर खींचते हुए आंखें मूंदी और फीके लहजे में बोली, तो मैं उसे तुम्हें समझने में गलती तो मैं उसे तुम्हें समझने में गलती कर रही थी शामी। जहां मैं तुम्हें एक आदत को जान पाती जहां मैं तुम्हारी एक आदत को जान पाती हूँ वही तुम नई खसलत अपना लेते हो। उनकी आवाज रोंदने लगी थी। फिर उन्होंने उन्होंने सिसकियां भरती नीलाश का चेहरा दोनों हाथों में भर लिया। उसे संभाल लेना नीलाश, वो बहुत उलझा हुआ है, मगर सिर्फ तुम ही उसे सुलझा सकती हो। उसे बिखरने मत देना। वो पत्थर बनता है मगर है नहीं। वो तुम्हें बहुत चाहेगा, उसकी कदर करना। वो अपने आंसू पीते हुए उसकी तरफ बड़ी आस और उम्मीद से देख रही थी। नीलाश ने उनका हाथ थाम कर लबों से लगा लिया। शाम को एनी और तलहा के साथ मोमो भी आई थी। वो सब उसी के कमरे में मौजूद थे। दोनों चचा और चचियां नीचे आन के पास बैठे थे। तलहा हस्बे आदत माहौल को जाफरान बनाए हुए था। यार अगर तो ये सब चक्कर ना चलाता तो अब हम दोनों इकट्ठे दूल्हे बनते। तलहा को शामिर की जल्दबाजी अभी तक भाई नहीं थी। क्यों भाई, इकट्ठे दूल्हा बनने से क्या क्या बरकत पड़ती है? एनी ने मुजहका उड़ाते हुए अंदाज में पूछा तो वो उसे घूरने लगा। अब देखो ना, तुम्हें तो कोई डर नहीं है। शामी भाई को तो फिक्र लगी होगी कि इतना हसीन पीस कहीं हाथों से निकल ना जाए। मोहम्मद ने बड़े मजे से कहा था। वैसे भी शामिर की तबीयत पहले से बहुत बदल गई थी। अब अगर मजाक नहीं करता था तो तैश में भी नहीं आता था। उसकी बात पर नीलाश बेसाख्ता हंसी थी और इसी बेसाख्तगी के साथ शामिर की नजरों ने उसके हंसे हुए खूबसूरत चेहरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तलहा ने फौरन उसे रगड़ा था। कमाल है शामी, मुझे नहीं पता था कि तू इतना रोमांटिक है। अब बाकी सबके तो खाक समझ में नहीं आई, मगर शामिर ने खज्जल होकर निगाह जरूर फेर ली थी। और अपने मुतलिक जनाब का क्या ख्याल है? नीलाश ने खिलखिलाकर तलहा से पूछा तो उसे आ भरकर मोमो की तरफ देखा, जिसकी शिकायती नजर साफ कह रही थी कि कोई बकवास मत करना। कहाँ मैं कहाँ ये मकाम, अल्लाह अल्लाह, भाई हमें कौन होने देता है रोमांटिक? अल्लाह रे, ये बेबसी बेचारगी का अचार और मुरब्बा। एनी के अजीब से तंज और इस्तिजा पर सबकी हंसी बेख्तियाराना थी। यार एनी, तुम अखबार में तंज़ो मज़ाक के कॉलम क्यों नहीं लिखना शुरू कर देती? तलहा ने हासी संजीदगी से पूछा तो वो वाकई यूं अकड़ कर बैठ गई जैसे कहीं कि आलिम फाजिल हो। खाना खाने के बाद काफ़ी देर बाद वो लोग वापस लौटे। अलबत्ता ऐनी आन के पास ही थी और नीलाश का भी कमरे से जाने का मूड नहीं हो रहा था, मगर आन के सामने इनकार करते हुए उसे शर्मिंदगी हो रही थी। वो कमरे में आई तो शामिर आंखों पर बाजू रखे लेटा हुआ था। नीलाश ने अभी तक उसका हाल तक पूछने की जहमत नहीं की थी, बल्कि उसमें हिम्मत ही नहीं पैदा हो सकी कि उससे वो हातिफ होती। वो हीटर ऑफ करके बिस्तर पर आई और हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप भी ऑफ कर दिया। इसे ऑन ही रहने दो, शामिर ने अचानक बोला था। वो डर सी गई। फिर उसे लैंप ऑन किया और अपनी जगह पर लेट गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब किसी अजीब से एहसास में घिर कर वो उठ बैठी। उससे सोए हुए दिमाग को हाजिर किया तो एहसास हुआ कि शामिर करा रहा था। वो फौरन आगे खिसकी और झुककर उसे देखा। वो सख्ती से निचला लब दांतों तले दबाए हुए था। वो हरासा हो गई। शामिर, क्या बात है? उसे बेसाख्ता उसे हिलाया था, फिर उसकी पेशानी पर हाथ रखा जो सर्दी में भी पसीने से तरबतर थी। ओ माय गॉड, वो परेशान होने लगी। उसे बुखार हो रहा था। शामिर,
उसे दोबारा से झिझोड़ कर वो पुकारने लगी तो उसे सुर्ख बोझल आंखें खोलकर उसे देखा। वो मध्यम सी आवाज में बोला, फिर खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, पानी देना प्लीज। उसे फौरन ढका हुआ जग उठाकर पानी गिलास में उंडेला और उसके सर के नीचे रखकर उसे जरा ऊंचा ऊंचा करके उसने लबों से गिलास लगा दिया। वो सारा पानी पी गया था। और चाहिए? उसे शामिर की जर्द रंगत को तफक्कुर से देखते हुए पूछा था। उसने नफी में सर हिलाया। इधर देखो, साइड टेबल की दराज में पेन रिलीफ करने वाली दवा पड़ी होगी, वो दे दो। वो आंखें मूंदे हुए बोझल सी आवाज में बोला था। नीलाश ने फौरन उठकर गोली निकालकर उसे दी और पानी का गिलास भर दिया। शामिर, क्या बहुत दर्द हो रहा है? वो आंखें मूंदे लेटा था। नीलाश ने बहुत झिझक कर पूछा था। उसने हल्के से इस बात में सर हिलाया था और उसके जवाब ने ही नीलाश की आंखों को जलथल कर दिया। मैं आंख को बुलाऊं? उसकी बात पर शामिर ने फौरन आंखें खोली और हाथ हिलाकर उसे रोका। आई एम फाइन नाउ, वो रुक रुक कर बोला था। फिर उसने आंखें मूंद ली। कहाँ दर्द हो रहा है? उसे रहा नहीं जा रहा था। इतना मजबूत मर्द कैसे बेहाल सा पड़ा था। वो चौंक कर जाग उठा था। सर दबा दूं आपका? उसकी आवाज रूंधने लगी थी। नहीं, तुम सो जाओ, उसने आहिस्तगी से कहा था, मगर वो अनसुनी करके उसके पास बैठकर उसका सर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद शामिर ने अपना गर्म मजबूत हाथ उसके ठंडे हाथ पर रख दिया तो एक सनसनी से उसके पूरे वजूद में दौड़ उठी। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उसका दिल वहम और अंदेशों की आमाजगाह बन गया। शामिर, क्या क्या यहाँ भी दर्द हो रहा है? उसे रोना आने लगा। क्या था ये शख्स? जितनी नफरत गुजरे दिनों में उसने उस शख्स से की थी, वो उसे धोए चला जा रहा था, लम्हों में उसके दिल को गुदास कर रहा था। वो तो उसे मात देने का सोच रही थी, मगर अब शामिर प्लीज बताए ना, क्या यहाँ भी दर्द हो रहा है? वो बस तैयार थी रोने को। शामिर ने बमुश्किल नफी में सर हिलाया। कितनी ही देर वो उसके सीने को सहलाती रही। काफी देर गुजर गई। वो शायद सो चुका था। शामिर, शामिर, उसे झिझोड़ा था। वो हड़बड़ा कर जाग गया। आप ठीक है ना? आप? उसने बड़ी उम्मीद से पूछा था। शामिर ने गहरी सांस लेकर आंखें मूंद ली। नीलाश, उसने बहुत बोझल लहजे में पुकारा था। वो जी जान से उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। जी, अब अगर तुमने कोई बात की तो मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा। वो उसकी बात पर हक्का बक्का मुंह फाड़े उसे देखती रहेगी। संगदिल और जालिम इंसान, इनसे तो हमदर्दी भी नहीं करनी चाहिए आदमी को। वो खुद को कोसती हुई लेट गई, मगर फिर भी सुबह होने तक वो वक्तन फवक्तन उसे देखती रही थी। एक दो मरतबा पेशानी पर हाथ रखकर बुखार भी चेक किया, जिसमें काफी कमी आ चुकी थी। सुबह वो नाश्ता बनाने के लिए जल्दी उठ गई। एनी और आन को नाश्ता बनाकर देने के बाद वो शामिर के लिए सूप बनाकर ऊपर चली गई। अभी वो बिस्तर पर ट्रे रखकर पलटी ही थी कि उससे टकरा गई। शामिर ने फौरन उसे सहारा दिया था। उसके कुर्ब से लहजा भर को वो कपकपा कर रहेगी। वो शायद, बल्कि यकीनन गुसल करके निकला था। ब्लैक पैंट और बुनियाद में उसका मजबूत सरापा उसके इंतहाई करीब था। वो नाश्ता वो हकलाई, साथ ही कमर पर गिरफ्त किए उसके हाथों को हटाना चाहा। नीलाश, अब बस करो, बहुत हो गया। जो फैसला करना है कर डालो, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उस पर झुका मध्यम लहजे में बोल रहा था और हो सकता है वो कोई इंतहाई फैसला कर डालती, मगर वो इस कदर होशियार और जीरक था कि उसे बेबस करने के बाद उससे फैसला मांग रहा था। वो उसकी कुर्बत को भूलकर संजीदगी से उसे देखने लगी और जब बोली तो उसकी आवाज रुंधी हुई थी। शामिर मलिक, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहती। तुम वो बोलते हुए एकदम रुकी। आप जो फैसला चाहें करें, वो मुझे कबूल होगा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। वो लब भेंचे उसे देख रहा था। और अगर मैं फैसला करूं सारी उम्र तुम्हें अपनी कैद में रखने का? फिर वो आहिस्तगी से बोला। तो वो नम आंखों से उसे देखेगी तो भी मुझे कबूल होगा, लेकिन शामिर, आपको मेरे अंदर सोई मोहब्बतों को जगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। वो भीगी आवाज में बोलती शामिर को अपने दिल में उतरती महसूस हुई। अगर ये मेरी सजा है तो मैं इसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। और नीलाश, मोहब्बत तो दिए जाने का नाम है ना, और मैं इस मोहब्बत का इंतजार करूंगा जब तुम मेरी दी हुई मोहब्बतों में से अपने नाम की मोहब्बतें मेरे हवाले कर दोगी। करोगी ना? उसे बहुत मोहब्बत से उसकी आंखों में देखते हुए आस भरे लहजे में पूछा था, और उसके लहजे में इस कदर सच्चाई थी कि नीलाश का सर आप ही इस बात में हिल गया। उसने सिसक कर अपनी पेशानी शामिर के मजबूत सीने पर टेक दी। शामिर मलिक ने बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसे अपनी मोहब्बतों के हिसार में लिया था। दिल में अपने लगाए हर जख्म को मिटाने का अहद करने और उसके दामन को खुशियों से भर देने का अज़म करते हुए वो जानता था कि वो एक दिन उसकी मोहब्बतों के जवाब में मोहब्बत ही लौटाएगी। और अब उसे बहुत तहम्मुल से उस रोज़े रोशन का इंतज़ार करना था।